آئیے جی اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. آپ نے دماغ سے بھی ہوئی اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اصل میں جس ایک ایشو کے لیے وہ یہاں پر بلایا انہوں نے. تو ہم اجلاس کو اوپن کرتے ہیں. تو ون بائی ون جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اپنا تعارف کراتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیادر ہے. میں راولپنڈی اسلام آباد فوٹو جرنل ایسوسیشن کا منتخب صدر ہوں 17 سال سے. بہت اچھا اقدام ہے یہ شمسی صاحب کا اور میری بہن فوزیہ باجی کا کہ ہمیں کم سے کم اس ایجنڈے پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ اب حالات جو حالات آج ہیں اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. اس میں بات لمبی کرنا وہ فضول ہے کہ 11 مہینے 6 مہینے 8 مہینے ایک نارمل بات تنخواہ دینے کی. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ادارے کما رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ادارے کما نہیں رہے. ادارے کما رہے ہیں. پہلے 20 کروڑ ماہانہ کما رہے تھے, تنخواہیں 4 کروڑ تھیں. اب 8 کروڑ کما رہے ہیں, تنخواہیں 1 کروڑ ہیں. اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. کوئی فرق پڑا ہے لیکن کیونکہ جو سرمایہ ہوتا ہے, جو جاگیردار ہوتا ہے, اس کو اگر پرافٹ میں بھی کمی ہو تو اس کو نقصان سمجھتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے. وہ سمجھے شاید نقصان ہو رہا ہے تو ان کو نقصان نہیں ہو رہا. اس کے لیے میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ شمسی صاحب کی قیادت میں سینئر صحافی ہیں, یہ ہمارے بہت پرانا نام ہے ہماری صحافت میں. ان کی قیادت ان کی ہونی چاہیے. اور کیونکہ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور ہر تنظیم سے ایک بندہ لے کے ایک کمیٹی بنائے. جو یہ ارباب اختیار لوگ ہیں, ہمارا پریس کلب کا پلیٹ فارم ہے جو 2 دوروں میں تقسیم ہوا ہے 1 سال سے, وہ لسٹوں کہہ رہے ہیں جی لسٹیں کہہ رہے ہیں ہماری لسٹیں ٹھیک ہیں. ایک الیکشن بھی کرایا جائے فوری طور پہ اور ایک کمیٹی ایسی زوردار کمیٹی بنے جس میں سارے جو ہے وہ اس سے حکومتی ان سے ملاقات کریں اور انہیں کہیں کہ بھائی جیسے آج بلایا ہوا ہے محترمہ فضلہ چگوان صاحبہ نے, پتہ نہیں وہاں کیا بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے لیکن کچھ انہوں نے پک اینڈ چوز والی بات ہے لوگوں کو بلایا ہوا ہے. تو ایک دھڑے سے لوگ جائیں. یہ جنازے والی بات انہوں نے بڑی زبردست کہ جنازہ تو ہم اکٹھا پڑھ لیں. یہ ہمارے جنازے ہی اٹھ رہے ہیں. یقین کریں کہ لوگ خودکشی کی نوبت ہو آئی ہوئی ہے کہ پیٹرول کے پیسے نہیں لوگوں کے پاس, کھانے کے پیسے نہیں, بچوں کی فیسوں کے 9 مہینے. سینئر صحافی ہیں, میں نام لینا چاہتا کہ ان کے بچوں کی فیسوں کے 9 مہینے ہو گئے ہوئے. دودھ کے پیسے نہیں ہے, کرایہ کے پیسے نہیں ہے. لوگ لفٹ لے کے صبح آتے ہیں کہ یا کسی کو فون کرتے ہیں کہ یار ہمیں تم ساتھ لے جانا. اور ہمارے ایک صحافی بڑا سینئر صحافی ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے کئی دفعہ کو لفٹ ملتی ہے, وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی ملتی ہے, تو میں وہاں 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں, پھر وہ دوبارہ لفٹ لے کے میں نوابت پہنچتا ہوں وہاں. تو یہ حالات ہوں گے, اس سے برے حالات اور نہیں ہوں گے. خدا را اکٹھے ہو جائے, کمیٹی بنائی جائے جو سب سے ملاقات کر کے تو ارباب اختیار کی بات پہنچائے. بہت شکریہ. میں نے اصل میں دفتر جانا ہے اس لیے میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سجاد حیدر صاحب نے بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے. یہ جو بحران ہے یہ بیسیکلی ایک طرف تو یعنی معاشی بحران ہے, دوسری طرف ٹیکنالوجی کا بحران ہے. یعنی ٹیکنالوجی نے ہمیں چیلنج دیا ہے, ٹیکنالوجی بدلی ہے تو مالکان کو اب ایک جگہ اخبار بنا کے سبھی جگہ بھیج سکتے ہیں, اس لیے ان کو سہولت ہوئی ہے. ٹیکنالوجی نے ہمیں چیلنج دیا ہے, ہمیں اس چیلنج کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز تھیں وہ ہمیں یعنی شاید اس وقت بدلتے وقت کے ساتھ ہماری وہ یعنی بدلی نہیں ہے, ہم نے بہتر نہیں کی. یہ 3-4 جو چیلنج اکٹھے ہو کے ایک ایسے پوائنٹ پر آئے کہ تھوڑا سا بحران آیا معاشی تو یہ سب ہمارے دڑام سے گر گئے. تو اب یہ سجاد حیدر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں اسی پہ یعنی بیسیکلی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو نمائندہ تنظیمیں یہ ہیں یعنی BFUJ ہے, RAUJs ہیں. میں ارسپیکٹو کہ وہ کون سا گروپ اور یہ کہ پریس کلب میں کون دھڑا یہ سارے مل کے ایک یعنی اپنے نمائندے وہ اکٹھے کریں اور وہ اپنی تجاویز دیں. سینئر صحافیوں کو بٹھائیں ساتھ کہ بھائی ایک ڈرافٹ کریں جو ایک لا بنے. یعنی لا ہم نیشنل اسمبلی سے بنوائیں, اس کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے ان تنظیموں کی بھی ضرورت ہے, ورنہ تو کوئی بھی کسی وکیل سے ڈرافٹ کروا کے تو یعنی ہم وہاں جا کے خود ان کی محنت کر سکتے ہیں. لیکن یہ یعنی
کیونکہ یہ ایکسس بہت کثیر الجہت ہے اور اس کو کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک پلیٹ فارم، کوئی ایک شخص وہ اسے نپٹ نہیں سکتا. اس لیے یہ جو بحران کی یہ شکل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے. اب تو ڈیڈ باڈیز ہیں ہم، یعنی تنظیم کسی کی کیا حیثیت اوقات ہے. اب چلے جاؤ کسی کے پاس بالفرض، میں ایک ٹیکنالوجی کی چیلنج کی اگر کی مثال ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں فلاں اخبار کا نمائندہ ہوں، وہ کہتے ہیں کون سا اخبار جی، وہ یعنی کوئی پڑھتا کون ہے اب اخبار؟ میں تو فیس بک پر سب سے پہلے، میں ٹویٹر پر سب سے پہلے یہ خبر پڑھ لیتا ہوں مجھے. اب یعنی یہ ٹیکنالوجی کا وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ اخبارات ہو گئے ہیں وہ کیونکہ سبھی کو وہ دے رہے تھے یعنی ڈکلریشن، تو نتیجہ کیا یعنی یہ نکلا کہ ان پروفیشنل. اور تیسرا یہ کہ ہم نے تو چلے جیسے بھی گزر گئے اور ہمارے تو اب یعنی ایک طرح سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. تو جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹیوں میں نئے بچے پڑھ رہے ہیں جرنلزم، جو ہم سے متاثر ہو گئے، جو ہمارے گولڈن ڈیز تھے ان سے متاثر ہو کر کے جناب یہ جرنلزم کو بہت اچھا پروفیشن ہے. وہ جو یونیورسٹیاں ہمیں نئے وہ دے رہی ہیں، نئے بے روزگار کل کے لیے، ہمیں ان کو بھی اسٹیک ہولڈرز کو بلانا ہوگا. تمام یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بلا کر ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو یا ایون وائس چانسلر صاحب کو کہ بھائی جان یہ نئی بحران ہے، یہ جس انڈسٹری کے لیے آپ نئے گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں اس کے لیے اب رستہ اور اس کے لیے سچویشن اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں، آپ دیکھ لیں آگے، تاکہ وہ بھی ہمیں کچھ تجاویز دیں اور ہم جو اپنے جو آلریڈی یہاں سفر کر رہے ہیں ہم اپنی تجاویز لے کر پارلیمنٹ کے پاس جائیں اور ان سے گزارش کریں کوئی نیا لابھ آئیں جس میں ہمیں کوئی رستہ مل جائے. ورنہ یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے، کوئی ایک تقریریں کرنے سے، ایک جگہ سے میٹنگ کرنے سے یہ حل نہیں ہے. بہت شکریہ. بس میں اپنی بات کر کے میں اصل میں بہت اچھے سے لیٹ سر سوری آپ کی بات صاحب راشد صاحب جو ڈیتھ ہوئی ہے جس کی، وہ بھی کیمرہ مین تھا. سیلریز کا ہے سب کا ایشو ہے، رپورٹرز، کیمرہ مین، جی ایس این جی، ہر کسی کا یہ سیلری کا ایشو ہے. تو شارٹ کروں گا، تجویز میں جاؤں گا کہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ہائی کورٹ، پیمرا، یہ 4 ادارے ہیں جو ہماری سیلریز کے بارے میں شاید کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے رپورٹر بھی بیٹھے ہوں گے، پارلیمانی بھی بیٹھے ہوں گے، مشوانی صاحب سینٹ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے رپورٹر بھی شاید کوئی بیٹھا ہو، اگر نہیں ہے تو ہائی کورٹ کی بھی 2 بڑی معروف تنظیمیں ابھی نئے ان کے الیکشن بھی ہوئے ہیں. بہرحال اس بحث میں نہیں جاؤں گا. اگر جو وہاں کی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ کی بھی ایک تنظیم ہے، ہائی کورٹ کی بھی تنظیم ہے، پارلیمنٹ کی بھی، قومی اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی یہاں پہ کافی سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، پی ایم ایل این میں ہے یا پیپلز پارٹی میں. تو قانون بنوانا بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں تو بڑا جونیئر بندہ ہوں، شاید مجھے کوئی سیاستدان جانتا بھی نہ ہو. تو آپ قانون بھی بنوا سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے سو موٹو بھی کروا سکتے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں بھی یہ ریٹ دائر کر سکتے ہیں سروس کے لیے، اور آپ پیمرا میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر جاننا چاہیں اور نہ جاننا چاہیں تو ہم بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، بہت ساری اچھی تقریریں کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت اچھا بلیم کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، آج ہم جو ہے جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کوئی امیجیٹ سلوشن نکال کے کوئی امیجیٹ حل نہیں لینا. ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ فرض کریں اگر ہم کسی رپورٹنگ کی کسی ٹیم کو کہہ کے یا کسی گروپ کو کہہ کے کسی منسٹر کو مل کے کوئی امیجیٹ ہمیں مل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ہمیں پارلیمنٹ سے بڑا اچھا قانون بھی بنوا. جی وہ پارلیمنٹ کا تو میں گزارش کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کا تو حال ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو سینٹ میں ہوا جیسے ہوا، تو اگر ہم اس پارلیمنٹ کے اوپر بیس کر کے ساری چیزیں چاہیں کہ پارلیمنٹ سے یا عدالت میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم سولوشن دینا ہے اس کا، تو اس کے لیے میں عمرانہ کومل بات کروں، تجویز دی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بھوکا بیٹھا ہو تو ہم کہیں کہ ہم نے لانگ ٹرم کام کرنا ہے، اس کو ابھی کھانا نہیں دینا. ہم نے 2 پلاننگ کرنی ہے، ایک ہم نے شارٹ ٹرم کرنی ہے ایکشن، اور ایک ہم نے لانگ ٹرم کرنی ہے کہ تاکہ بھوک رہے نا، تب کہ موت رہے نا تب. اور یہ کہ ہمارے ایسے بھی ساتھی ہیں جن کے ساتھ ہم ہر وقت رہتے ہیں کہ کہیں یہ خودکشی نہ کر دیں،
और रात को हम लोग परेशान होते हैं कि फिर रात को फ़ोन कर रहे होते हैं कि ना उसका 1 घंटा गुजर जाए हमारे साथ बात करते करते। तो ये वाली चीज़ है, हमने 2 वो करने। और ये हमारे जितने भी है, आप लोग धड़ाबंदी कह रहे हैं ना, यहाँ धड़ेबंदी नहीं है, यहाँ शख्सी बंदी है। आप एक शख्स के साथ खड़े हैं तो आप उसके ग्रुप के हैं। यहाँ कोई किसी के पास विजन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हम लोगों को, कारकुनों को, जो लीडर हैं वो टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। जिस दिन इसे क्या कहते हैं वोट हमारा कॉस्ट हो गया, उसी वक्त हम लोग देख रहे होते हैं कि हम सामने खड़े हैं, अब हमें ये पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब तक एक्शन नहीं लेते, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे खड़े होना होगा। मुझे ये याद आ रहा था, हमारे सर जिस वक्त बात कर रहे थे शमसी साहब, तो मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा था जैसे हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करता है कि सब एक हो जाओ, तुमने ये नहीं करना, तुम एक तजर्बा है। हमारे पास यूनिवर्सिटी है, हमारे पास एक अदारा साज, अहद साज जो शख्सियात हैं, हम उनके तजर्बात को अमली तौर पर क्यों नहीं वो करते। ये तो वही बात हुई कि वो 22 साल से जो लगे हुए थे और आज वो समझ रहे हैं कि हम बन गए हैं और करप्शन वो भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। हर चीज़ की रिपोर्ट हमारे सामने है। खुदारा हम अपने लीडर से भी, तमाम लीडरों से भी वो करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम तो जहाँ भी जाते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हमें यहाँ अगर बात हो रही है सहाफ़ियों की तो हम जाके खड़े हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता वहाँ भी सुर्खी फोटों की बात हो रही होती है कि आप बन ठन के आए और हमारे प्रोग्राम में बैठे, ये करें वो करें। मुझे तो कहीं भी संजीदगी नज़र ही नहीं आ रही। हम लोग तो कहते हैं कि आप इशारा करें, हम आपके इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दें, लेकिन आप खून बहाने वाले एक कतरा बहाएंगे तो हम अपनी जान देंगे। तो ये भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमने फौरी तौर पर भी इक़दाम उठाने हैं। आज हमारा हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन की ओर से की सेरेमनी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आए हुए थे, पार्लियामेंट भी। हम सब ने ये कहा है कि जो भी फौरी तौर पर कानूनी मदद चाहिए होगी, हम फराहम करने के लिए हर उस सतह तक जाएंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। और ये फौरी तौर पर ऐसे समझ लें कि एमरजेंसी लगी हुई है, इसके अलावा और कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगर साहब के साथ ही मुझे भी 30वां साल शुरू होने लगा सहाफ़त में। और मैं उस ज़माने से जब मैं सहाफ़त में नया आया तो मैंने जो भी कुछ सीखा अपना, हमारे सीनियर जो हैं शमसी साहब, नवाजुल्लाह साहब और फौजिया साहब, इनसे मैंने देखा उस ज़माने में ये 2 थे, RIJ दस्तूर और बर्मा, और कोई इतनी जड़ेबंदी नहीं थी। और वो अख्तिलाफ भी सिर्फ प्रेस क्लब के इलेक्शन तक होता था, ऐसे ही है ना। और उसमें भी इतनी रवादारी थी कि देख के हैरत होती थी। और इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद सब एक। उसका नतीजा ये होता था कि जो भी कभी क्राइसिस आया, कॉल दी गई, दोनों तरफ के लोग आए या दोनों तरफ के आए भी तो पॉइंट पर इकट्ठे होकर आए अलग अलग, और वो मसला हल हुआ। प्लाटों की सियासत उस दौर में नहीं थी, मौसम की सियासत उस दौर में नहीं थी। मेरा ख्याल है, मुझे याद है शमसी साहब ने डायरेक्टर ABP का अहदा रिफ्यूज़ किया था बेनज़ीर को। इसी तरह पहले वो पुरानी बातें, अब जो हैं कम अज़ कम 150 धड़े तो हैं। और मैं हैरान हूँ, तंजीमें इतनी डिवाइड हो रही हैं कि अब सराइकी तंजीम बन रही है, पश्तून तंजीम बन रही है, पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें बन रही हैं, एसोसिएशन बन रही हैं। चलें, जो एसोसिएशन हैं बीट की, वो अपने मसाइल अपनी सतह पर हल कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम है। और वो इस तरह से अच्छे हैं कि वो बाकी बड़ी तंजीमों का बाजू भी बन सकती हैं। जैसे फयाज ने कहा कि अभी पार्लियामानी रिपोर्टिंग है, एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट की है, कोर्ट की है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम सबको, शमसी साहब ने जैसे कहा कि एक नुकते पर इकट्ठे होना है, उसके लिए जो शमसी साहब ने कल परसों रब्ते किए, वो मेरा ख्याल है पैगाम सही तरह सब तक पहुँच नहीं सकती। ज़रूरी है कि एक छोटी सी कमेटी बनाएं पहले, जो तमाम ये जो घरों के लीडर हैं, इनसे मिलकर उनको समझाएं कि भाई आप अपनी अपनी तंजीम रखें, इंटैक्ट रखें, लेकिन इस एक नुकते पर सब इकट्ठे हो जाएँ। एक कोई जॉइंट एक्शन कमेटी बना लें, जैसे जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस, इस नाम से एक कमेटी बना के इस मसले को लेकर सब इकट्ठे होकर आगे चलें। और उस पर जैसे डोगर साहब की तजवीज़ है, कानून साजी करवाएँ, उनकी तंजीम है, पार्लियामेंट जाके मिलें जिससे भी मिलना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने है 184(3) के तहत, हम पास वाले अपनी खिदमत आपको पेश करेंगे। लेकिन पहले उसके लिए बेस बनाएँ, 3-4 लोगों की कमेटी बनाएं जो सब तमाम जड़ों से मिलकर हर साहब आपसे ज़मीन समझाएँ कि हम यहाँ किसी की लाश पे सियासत करने नहीं है, इस बहरान को हल करने हैं। लोगों के ज़हन में यह है
कि लोग जो है ना सब निकलेंगे, अपने अपने ग्रुप बनाएंगे, छोटे सियासत करेंगे और गालिबा ऐसा हो भी रहा है। और आज की न्यूज़ को भी शायद यही समझ के बाकी सारे बड़े नहीं आए, उन्हें जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है, हम ये क्राइसिस हल करवाने के लिए आए हैं और उसके लिए हमें मुद्दे पर इकट्ठे होना है और उसके बाद कोई अगला लाए अमल लेके आगे चलना। उनको भी दावत दी थी, मैंने उनको भी दावत दी थी। मैं नाम नहीं दोहराऊंगा, इन्होंने नाम लिए थे। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकली ये समझते हैं कि ये वो नाम है जो मसाइल को हल कर सकते हैं। और पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि मसाइल उन्हीं की वजह से बने हैं। हमारे लीडरान ने पिछले 20 सालों में गवर्नमेंट से कितनी मुलाकातें की, वज़रा से जो मुलाकातें हुई, आप में से कोई मुझे बताए किसी को उनके मिनट्स का पता है कि वहाँ पे क्या बात हुई थी, क्या तय हुआ था? आप में से किसी को नहीं पता। आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, पहले तो वो इश्यूज़ आइडेंटिफाई होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का इशू है, सेफ्टी का इशू है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, एक तो उसको आप मैं मुख्तसर रखूँगा कि आप वो इश्यूज़ के ऊपर एक लेटर ड्राफ्ट करें और इन तमाम लीडरान का जिनके आपने नाम लिए हैं कि इन पर आपकी हमें रिटर्न सिफारिशात चाहिए ताकि उसके हवाले से हम कानून साजी की तरफ जाना चाहें। फिर जो ना जमा कराया उस हवाले से पब्लिक को बता दें कि जी इनका इंटरेस्ट इन इश्यूज़ पर मीडिया के लिए ये है, ताकि दुनिया को पता चले कि ये जो जायदा यानी कि ईंट की मस्जिद बनी हुई है, इसके पीछे जो इमाम है वो चाहते क्या है। और मैं अगले हफ्ते एक लेटर गवर्नमेंट को लिख रहा हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 40 सालों में इन तंजीमों ने किया क्या है आपके लिए, क्या होना चाहिए था, क्या किया, क्या नहीं किया। 2000 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर मौजूद है। कंडीशन ऑफ सर्विसेज के हवाले से कोई कानून नहीं बना। तमाम अदारों में प्रोविडेंट फंड बनने थे। मेरे सीनियर बेहतर बता सकते हैं कि किन किन अदारों के अंदर मौजूद है और उनमें निसफ हद तक सहाफ़ियों की तादाद मौजूद है या कि नहीं है। अब मैं आता हूँ उस लेजिस्लेशन की तरफ जो हमारी होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने एक स्टडी करवाई थी, मैं उस स्टडी का हिस्सा था, जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर गैलेक्सी कम्युनिकेशन, ये पेरेंट कंपनी है 92 की। ये पेरेंट कंपनी के अंदर जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और उसके बाद लोगों को कहा जाता है कि आपको 92 टीवी या ये अखबार के लिए काम करना है। अखबार और टीवी के लिए टोटल 15% जो है वो एम्प्लॉयमेंट होती है। और जब वेज बोर्ड की बात की जाती है तो फिर कहा जाता है कि हमारे पास तो मुलाजिम ही जो है वो अखबार के अंदर ये 10 हैं या 5 है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो वेज बोर्ड लगता ही नहीं। एक तो सूरत हाल ये है, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो डोगर साहब ने कही थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त मीडिया में नई नई इनोवेशन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इसके हवाले से मैंने 2 साल पहले कुछ प्रोग्राम शुरू किए। जिस हॉल में हम बैठे हैं, एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा ये एग्रीमेंट हुआ था, मैंने उनको कंसल्टेंसी देनी है, दूंगा फ्री, और उन्होंने मुझे 25 जो है ट्रेनिंग की जो है वो कमिटमेंट की थी। मैंने पूरे पाकिस्तान में 5 मैंने यहाँ पे 3 मैंने पिंडी में करवा के दी थी। यहाँ जब मैं करवा रहा था तो इसी प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान ने मुझे यहाँ से प्रोग्राम करने से रोक दिया था। तो आपको ट्रेनिंग जो है ये इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, उसमें से सीनियर लोगों को भी। जब तक लीडरशिप की मुलाकातों के मिनट्स नहीं बनेंगे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने वेज बोर्ड का कानून बनाया, वो कितना नंबर है वेज बोर्ड का? 7वां 8वां? बताएं कितने इम्प्लीमेंट हुए?
آپ بھی لیڈر تھے, یہ بھی لیڈر تھے, صاحب چودھری صاحب بھی لیڈر تھے, نواز رضا صاحب بھی لیڈر تھے, کتنے ہوئے اور کتنے لوگ ہیں جن کو ویج بورڈ مل رہا ہے. میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ تو ویج بورڈ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا, اگر 3 آدمی ہیں باقی تو سارے ہیں ہی نہیں, تو کہاں گیا وہ ویج بورڈ؟ نئے قوانین کی بھی ضرورت نہیں, صرف آپ کو اپنے ضمیر کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر امریکہ کا آئین صرف روایتی آئین ہو کے وہ اتنی قدر ہو سکتی ہے کہ جو روایت بن گئی اس پہ عمل ہو, تو آپ تو کم سے کم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ ہم نئے قوانین کی بات کریں, ہم طویل المدت پالیسیوں کی بات کریں. بڑی کہ آج اگر بھوکا مر رہے ہیں تو ہم طویل المدت پالیسیوں کو کیا کریں گے, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آج کی پالیسی ابھی امپلیمنٹ ہو جائے, یہ بھی ناممکن ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو کچھ اس طرح کریں ویلکم بٹ صاحب کہ ہمیں سب دیکھنا ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو معاملہ نہیں ہوگا. دوسرے پہ ایپلیکیشن فلاں ایپلیکیشن میں فلاں نے یہ کیا, اور ابھی آپ نے بات کی چلے بلی کے گلے میں گڈی کون باندھے گا, بات پھر وہی آ جائے گی. کام آپ نے کرنا ہے صرف یہ ہے کہ جو قوانین بنے ہیں انہیں پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو جائے. جو پارٹی ہے وہ اپنے احساس کرے کہ بھائی یہ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ایک فوٹوگرافر کو سیلری نہیں ملی, اس نے خودکشی. آپ کو پتا ہے کہ فوٹوگرافی کا جو سیکشن ہے وہ تو سکڑ گیا ہے. ہمارے دور میں تو ایک اخبار میں 18 فوٹوگرافر ہوتے تھے, اب ایکسلرس کے 3 فوٹوگرافر جو اتنا بڑا اخبار ہے, بھائی 16 تو ہے نہیں, ختم ہو گئے. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو فوٹوگرافر کو ہم تفظ دے رہے ہیں, اس کو تنہا دلا رہے ہیں. بھائی آپ نے شعبہ ہی ختم کر دیا. سب ایڈیٹر کا شعبہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, ایک اخبار میں سب سے بڑا شعبہ. اب اگر الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو وہاں کاپی ایڈیٹر ہے, ادھر بات کریں کہ تو وہاں پہ سب ایڈیٹر تھا, سب ایڈیٹر کا وجود ہی ختم ہو گئے. آپ وہاں سے ایک بندے بیٹھے, آپ کی خبریں آتی ہیں, اسی پہ سرخی لگی, اسے آپ آگے کرتے ہیں, 2 بندے پورا اخبار بنا کے بھیج دیتے ہیں. کدھر ہے آپ کے سب ایڈیٹر, کدھر ہے آپ کے کاپی ایڈیٹر؟ اور بھائی وہ سیکشن ہی ختم ہو گئے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں ان کے پروٹیکشن کی, تو بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیڈروں نے اپنی وسعت کے مطابق کام کیا ہے, انہوں نے کرتے رہے, یہاں تک ہم پہنچے. جیسے پاکستان بنا تو کہتے ہیں جناب پن نہیں تھی, کامن پن نہیں تھی. آج ماشاءاللہ بڑے بڑے جدید اسپتال بھی ہیں اور جدید عمارتیں بھی ہیں, بڑی اونچی بلند و بالا عمارتیں ہیں. ہمارے ادارے میں کیا تھا آپ کو پتا, 100 آدمی جو آپ کو لکھتا ہوتا تھا وہ کیلیگرافر تھا. کدھر گیا کیلیگرافر؟ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. آج اگر آپ کیلیگرافر لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں باہر نکال دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا, نہ ہوگا. بس آپ بیٹھے, WhatsApp بھی آئے ہوئے, نواز رضا بھی, آپ بھی بیٹھے, باقی دوستوں کو بھی بلائیں, خود کو بشارت کریں کہ یار کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اس کو آگے کیسے لے جانا ہے. یہ باتیں فضول ہیں کہ ہم جب پارلیمنٹ میں جائیں گے, پارلیمنٹ میں کیا ہو جائے گا؟ پارلیمنٹ تو اپنا 1 قانون اپنا نہیں بنا سکی, آپ کا کیا بنائے گی؟ تو جب کام اچیو مائل سٹون ہے, آپ نے بھائی بنائے ہی نا, جیسے بھی ہے آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا ہاؤسنگ سوسائٹی وجود میں آ گئی, آپ کے سامنے اتنا بڑا پریس کلب وجود میں آ گیا. کیا آپ اسے ایک کمرے کے پریس کلب کو بھول گئے؟ بٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا, نواز صاحب سب کو یاد ہوگا, وہ جو میلوڈی میں ہوتا تھا, اسی میں باتھ روم تھا اور وہ بدبو ساری آپ کے ساتھ موجود ہوتی تھی. تو آپ نے ترقی کی ہے, یہ نہیں ہے کہ بالکل صفر ہے. بات یہ کہ جو قوانین بنے ہیں اس پہ خودارہ عمل کریں اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہر آدمی کرے, نہ صرف لیڈر بلکہ میں ہوں, یہ ہے جو بھی ہے وہ کریں گے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. صرف یہ ڈرافٹنگ سے یہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے سارے قابل رسپیکٹ ہیں, باقی اگر وہ ایسوسیشنز کے پیچھے کو اپنے مقاصد, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ان کی باقی رہ گئی بات آپ نے کی. ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو کوئی تربیت دیں گے, ایک اچھا دیکھیں نا, ایک پڑھا لکھا, ایک جس کو اردو انگلش زبان پہ کمانڈ ہے, جس کو نیوز سینس ہے, جو باقی جرنلسٹ ہے جس نے 30 سال گزارے ہیں, ایک پلڑے میں وہ ہے اور ایک پلڑے میں وہ آدمی ہو جس نے کبھی قلم نہیں اٹھایا ہے. تو ہے تو دونوں صاحب لکھے نا آپ نے, یہ آپ نے کی ہے, ہم نے تو نہیں کیا, آپ سب اس میں شامل ہیں. تو ہمیں یہ تربیت کے برائے میں ہم آپ سے اپنی قیادت سے یہی کہیں گے کہ وہ تربیت کے لیے بھی کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا اور بوسٹ اپ کریں تاکہ جدید ٹیکنالوجی, میں آپ کو بتاؤں اگلے 20 سال بعد آپ کو یہ ٹی وی چینل نظر نہیں آئیں گے. اب تو ایسے ہے, اگر وہاں دیکھیں امریکہ, یورپ, ادھر دیکھیں تو وہاں تو وہ بنے ہوئے ہیں, اپنا ایک $10 دیں, سارے کے سارے ٹاک شو اس میں سے نکال کے دیکھ لو جو آپ کا دل کرتا ہے. آپ کو ٹی وی پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو ڈرامہ دیکھنا, اس میں ایک جمپ لگائیں, وہ ڈرامہ دیکھ لیں. تو اگلے 20 سال بعد یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ٹی وی چینل بھی اس طرح نہیں ہوں گے, جیسے آج اخبار اس طرح نہیں ہے, ٹی وی چینل بھی نہیں ہوں گے. تو
تو ہمیں اپنی وہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق آگے اپنے کو بڑھانا ہے. آپ سے ریکویسٹ یہی ہے اور صاحب اور نواز کہ اس کو آپ تربیتی مراحل کو بھی آگے کریں, اور یہ ایک جو صرف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک رواج ہے وہ ہمیں اپنے اندر کرنا چاہوں کہ کسی نے کسی کے گلے میں گھنٹی کی باندھ دی, یہ میں آپ کو بتا دوں, نہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے. شکریہ. اسے تجاویز دیتے تھے کیونکہ میں کچھ امپیر کہتا ہوں اور بات سب اتنا سا منظروں رسالت کا بھی اور کنڈی صاحب بعد میرے کا ادنا سا منظر. تو جناب آپ کا شکریہ, آپ نے حکم دیا تو ہم آ گئے. شمسی صاحب آپ سے آپ نے حکم دیا, ہم یہاں حاضر ہوئے. جو مسائل اور ان کے حل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اصل مسائل اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسائل بھی آپ سینئر کے پیدا کرتا ہے تو اس میں بے جان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ جس وقت ہم افضل بٹ صاحب کی زیر نگرانی نوائے وقت کے برسوں کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے, اس وقت جناب ہمارے سینئر صاحب جو ہے نواز رز صاحب وہاں سے صفر بات ہے, انہوں نے یہ گوہر کیا تھا کہ چلے ہمارے ورکر کے لیے یہ لوگ یکجہتی کے لیے آئے ہیں تو میں بھی جا کے کچھ اظہار کر دوں. اور پھر جن جن اداروں کے حق میں ہم ملازمین کے حق میں مظاہرہ کرتے تھے وہاں 10 آدمی باہر ہم مظاہرہ کر رہے ہوتے تھے اور 50 آدمی اندر کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس طرح آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا کہ جو متاثرہ ہے وہ متاثرہ ہے اور جو متاثر نہیں ہوئے اور وہ ویٹنگ میں ہے کہ کب متاثر ہوں گے لیکن وہ کام کر رہے ہیں نا. تو یہ جب تک آپ قلم چھوڑ ہڑتال نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگا. دوسرا وہ جو ہماری لیڈرشپ کے دعوے کرتے ہیں وہ اگر خود ہی مالکان کو پروٹیکٹ کریں تو اس طرح بھی نظام نہیں چلے گا. اس کے ساتھ ہی میں اس بچی کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس نے جو باتیں کی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ فوری ایکشن کا تقاضا کرتے ہیں, وہ لانگ ٹرم یا تیسرا نہیں. بیٹھے ہیں یہاں پہ, مجھے بھی لگ بھگ جو ہے نا یہ 25 سے 30 سال کا عرصہ ہوا. شمسی صاحب, حق بھیک کی طرح سے نہیں ملتا, حق چھیننا پڑتا ہے. یہ پارلیمنٹ, یہ سپریم کورٹ, یہ سارے جو آپ یہ وہ کر رہے ہیں نا جی کہ وہ جی آپ وہ ڈرافٹنگ کریں اور یہ کریں وہ کریں, اس سے بالکل کچھ نہیں ہوگا. وکیل چھین کے لیتا ہے اپنا حق, اب ڈاکٹر بھی چھین کے لیتا ہے اپنا حق. میرا خیال یہ ہے کہ ہم سارے جو ہے نا انتہائی, میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شریف النفس کمیونٹی نہیں دیکھی صحافیوں کی کہ جی وہ میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے. وہ والی بات کہ یہ ان ساری اداروں کو آپ لوگ آزما چکے, دیکھ چکے, اور حالت یہ ہے کہ اب جس طرح فیاض وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, اب پتنی جو ہے نا جو روش چل پڑی ہے تو یہ آگے جا کے کیا کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. 2007 ہمدرد اخبار یہاں شروع ہوا تھا اوصاف کے ساتھ, میں اس کے اندر گیا. اچھا وہ 6-7 مہینے انہوں نے تنخواہ دی, اس کے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے, وہ لے گئے اس کو مری روڈ چھوٹا سا آفس جا کے انہوں نے بنا لیا. میرا 82,000 روپیہ ان کے ذمہ تھا. مجھے وہاں جا کے انہوں نے بٹھا دیا, مری روڈ بٹھا دیا اور کہا کہ جی کام کرتے رہو تو جو ہے یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں مل جائیں گے. جب 82,000 ہو گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب نہیں ملیں گے. میں نے تالا خریدا, صبح جا کے وہاں دو اپنے ساتھ اور بندے ملائے, صحافی تھے وہ میرے دوست تھے, جا کے اس دفتر کو تالا لگا دیا. جب تالا لگا دیا تو اب جو صبح 11 بجے کی وہ شفٹ والے جو لوگ آتے تھے وہ سارے وہاں پہ جمع ہوتے گئے اور مجھے ساتھ تھپ بھی دے کہ اچھا کیا تالا لگایا. اب اندر والے جو تھے اندر, باہر والے باہر. اس کے بعد وہ ابو بکر, شاید اس کا نام تھا ابو بکر صاحب, وہ جو ہے نا وہ ابو بکر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ یار اس سے جا کے کہو کہ میں جو ہے نا اس سے میٹنگ کرو اور اس سے تالا کھلواؤ. میں نے کہا تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک پیسے نہیں دو گے. وہ ابو بکر آیا, ابو بکر نے مجھے پورے پیسے دیے, پھر میں نے تالا کھولا. یہ جو آپ ایکشن کمیٹی اور کی بات کر رہے ہیں نا, خدا کی قسم کوئی ہم کو کیا نامرد ہیں, ہم کیا ہے, ہم جو ہے نا اتنی ضرورت ہم نے نہیں کیا کہ مالکان کیا بیچتے ہیں کہ بہت بڑے آسمانی مخلوق ہیں یہ. ہم ان کے دفتروں کو لگائیں تالے. خدا کی قسم مجھے یاد ہے میں اوصاف میں کام کیا کرتا تھا, ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی نا کسی وجہ سے, کوئی قومی چھوڑا تہوار آ گیا, کوئی ایک دن اخبار بند ہوتا تھا, مالک کی ماں مرنے والی ہو جاتی تھی.
इन्होंने कलम छोड़ हड़ताल की बात की है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम में जो लोग बैठे हुए हैं ना, आधों की जेब में पैसे हैं ठीक ठाक है, आधे ऐसे हैं जिनकी जेब में पैसे नहीं हैं। जिसकी जेब में पैसे हैं वो कहते हैं वो आएगा यहाँ बैठेगा बात करेगा, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ नहीं देगा जिसकी जेब खाली है। तो इसके लिए खुदा की कसम, खुदा का वास्ता है, हम सारों ने आखिरकार मर जाना है एक दिन। जो हम में खुशहाल है, जो बेहतर है, वो उसकी फ़िक्र करे कि जिसकी हालत जो है ना वो फयाज जैसी हुई है कि वो 10 महीने तनख्वाह नहीं मिली और बेचारा जो हार्ट अटैक 26 साल की उम्र में वो मर गया है। बाकी भी इस तरह के करके मरते जाएंगे और हम देखते जाएंगे तमाशा, ये होते जाएंगे, मीटिंगें होंगी, सेमिनार होंगे, बड़े बड़ी जनाब तकरीरें होंगी और हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। तो एक्शन जो भी करना है ना जी, आप ना आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें, ना पार्लियामेंट की तरफ देखें, ना किसी और इदारे की तरफ देखें। जो एक्शन करना है इसी अपनी अफराधी कुव्वत के साथ वो एक्शन करें और प्रैक्टिकल करें। शम्स साहब बड़ी मेहरबानी, आपने आज ये इजलास बुलाया, लेकिन 4-5 लाख या 10 लाख हमारी ज़िंदगी की औकात है, इसे पहले सामने रख लें, क्योंकि इतने की मार हैं। जब हम एक साथी मरेगा, खुदकुशी करेगा, उसकी तनख्वाहें रुकेंगी, मिनिस्टर आएगी, हमारे मुंह पे 5-10 लाख रुपया मारेगी, फिर लानत हम पे बरसेगी, फेसबुक पे तस्वीरें लगाएंगे और गायब हो जाएंगे। बस इतनी सी ज़िंदगी है और इतनी सी हमारी औकात है। इस औकात को सामने रख के आइंदा की लाए हम हिकमत अमली बनाएं। आप एक वक्त बनाएं जो CDA के पास जाए, 1 मिनट बैठ जाए, CDA के पास जाए, हमारे लिए मुफ्त कब्रों का इंतज़ाम करें, ईदी से बात करें, कफन दफन का इंतज़ाम करें, जो काम आप करने वाले हैं। ज़िंदगी आपको नहीं मिली, उन्होंने मारने का प्रोग्राम बना लिया और हमने मरने का बना लिया। कुछ ज़िंदगी के आगे बढ़ने की, कुछ जंग लड़ने का जज्बा रखें, फिर इस मीटिंग का फ़ायदा हो। अगर आपने 5-10 ले के मिनिस्टर के साथ तस्वीरें ही बनानी है, हमें शर्मिंदा ही करना है, घर वालों के सामने भी, माशरे के सामने भी, इतना तो हम फ़कीर भी मार जाए उसे भी चंदा मिल जाता है, जो हमारे साथ वो करके गई है इन दिनों में। और सब तालियां बजाते रहे कि हमने कामयाबी हासिल कर लिया है। लानत है इस कामयाबी में। हमारा एक साथी मार गया, उसका पूरा ख़ानदान मार गया और हम एक चेक का डंडोरा करते फिर रहे हैं। आप हमारे मरने के लिए कोई बाइज़्ज़त रास्ता ढूंढें, ज़िंदगी का रास्ता आपको मिलना नहीं है। या तो छोड़ेंगे लेटरियाँ, अपनी सारी जंग लड़ें, और या बाइज़्ज़त मुश्तरका एक रास्ता ढूंढ लें मरने के लिए। बस ये सर एक मिनट, आपकी बात मैं कम अज़ कम इसीलिए आया हूँ और आपको भी बताया कि ये जो चेक किए गए 10 लाख का, हम इसी के इससे आगे बढ़ने के लिए आए हैं, इसको डिनाई करने के लिए आए हैं कि हुकूमतों का काम खराब देना नहीं है किसी की मौत पे। हम यहाँ इम्प्लीमेंट करवाने आए हैं, उनको ये पावर करवाने हैं कि आपको लेजिस्लेशन करनी है और मालिकान को पाबंद करने हैं कि वो वर्कर्स को हर महीने की पहली तारीखों में तनख्वाह दें, बाकी तमाम आदमियों की तरह, और उनके नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दें। ये 10 लाख और ये चंदे और ये खैरातें लेकर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मतलब उसका शदीद गुस्सा था, फेसबुक पर चलाना था, हमें कामयाबी मिल गई, फिर 10 जुर्माना 10 लाख दी। इस प्रैक्टिस को ख़त्म करवाना। कोई अगर आदमी वर्कर मरता है तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से, तो उस पर जो भी कानून बनता है कम अज़ कम मालिक गिरफ्तार ज़रूर होना चाहिए। ये ऐसा कानून बनेगा, गिरफ्तार कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई थ्रेट होगा तो फिर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ। सर अगर कोई मिनिस्टर आता है, ख़ास तौर पर मीडिया से रिलेटेड कोई मिनिस्टर आता है, सब लीडरों को इतना कोड ऑफ कंडक्ट बना लें कि मिनिस्टर के कितने फासले पे रहना है और किस तरीके से रहना है। अगर किसी लीडर का या किसी का भी कोई ज़ाती ताल्लुक है तो ज़ाती चाय पे बुला के उसके साथ जितनी मर्जी खुशखबरियाँ लगाएं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सब बैठे हुए लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लीडर आके बैठे हैं ना, इसके साथ संजीदा गुफ्तगू होगी। आप यकीन करें कि वो डेट लग रही होती है, तो उसको भी हमें ये कहना है कि लीडर वो आए कोई मिनिस्टर तो हम उसका घेराव करें, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि मेरी उसके साथ तस्वीर है। ये जो सेल्फीइज्म है ना, ये ख़त्म कर दिया जाए। सर की है, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। 3-3.5 साल पहले की बात है, इसी तरह की एक गैदरिंग में इसी तरह मुशावरत हो रही थी, तो मेरा थोड़ा सा रिसर्च से और मीडिया के आने वाली टेक्नोलॉजी पे मैं बात करता रहता हूँ। मैं खुद भी चूँकि 5-6 साल से उसी में काम कर रहा हूँ, तो मैंने दोस्तों से कहा था कि जो छोटे अखबारात में काम करते हैं वो मुतबादल रोज़गार का इंतज़ाम करें अपना, और जो बड़े अखबारात वाले हैं वो 1-2 साल बाद वही भी सोचना शुरू कर दें। मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये भाई किस तरह की बात कर रहा है। तो आज मैं सब साथियों से कहता हूँ जो टीवी चैनल में, बड़े चैनल्स में काम करते हैं, वो 3 साल तक देर में रखें, उसके बाद उनके लिए रोज़गार नहीं होगा। और जो टेक्नोलॉजी के साथ चल सकते हैं वो जर्नलिज्म करें, वरना कोई दूसरा मुतबादल रोज़गार कर ले। ये मीटिंग्स करना, कानून साजी करना, ये कोई हल नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 साल पहले मुंसलिक हुआ टेक्नोलॉजी के साथ, आज बारोज़गार बाइज़्ज़त रोज़गार अपना इसी जर्नलिज़म के साथ, इसी टेक्नोलॉजी के साथ हासिल कर रहा हूँ। और हर साल जो आप कह रहे हैं ना कि माफिया, उस माफिया में मुझे भी शामिल कर लें, क्योंकि मैं हर माह 1-2 लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करता हूँ जो आप ही का हक लेके जा रहे हैं। मेरी जेब में रसीदें हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। वो तनख्वाह पहले मीडिया मालिक देता था एक जर्नलिस्ट को, अब वो जर्नलिस्ट चाहे अब उसको आप सिटीजन जर्नलिज्म का नाम दें, आप डिजिटल जर्नलिज्म का नाम दें, वो जर्नलिस्ट डायरेक्ट उस एडवर्टाइज़र से अपनी जेब में लेके आ रहा है, वो मालिक को दरमियान से उसने निकाल दिया है। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को ज्वाइन ना किया, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, तो सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी सारी चीज़ें फजूल हैं, वक्त का ज़िया है। जितनी मर्जी कानून साजी करवा लें, जितनी मर्जी ग्रुपों को जमा करने की कोशिश कर लें, ये कोई हल नहीं है। टेक्नोलॉजी खा गई है, टेक्नोलॉजी ने मार दिया है जर्नलिज्म को, जर्नलिस्ट को। जिसने भी सर्वाइव करना है इस टेक्नोलॉजी के साथ उसको खेलना पड़ेगा। लोग मुझे जानते भी होंगे, आज मीडिया का दौर है, आपकी जहाँ सब साथी किसी हर एक के साथ मेंबर होंगे, 5000 हैं, किसी के साथ 10,000 मेंबर हैं। हमारा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम एक ऐसा पोस्ट बनाए जिसमें हमारे एक साथी जो फोत हो गए उनकी तस्वीर और साथ एक रोटी लगा के, अगर आप ये एक पोस्ट आप अभी वैलिड कर दें तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये आपको इतनी इफेक्टिव होगी कि आपका पूरे इस्लामाबाद क्या इंटरनेशनल मीडिया भी आपको प्रमोट करेगा कि ये आदमी कौन था और ये रोटी का क्या मसला है। आपसे ये क्वेश्चन एक मार्क कर दें तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि वो निस्बत हमारी एक साथी को फलां से गए तो फलां से नहीं, ये हमारा मैसेज पूरी हर साथी के पास पहुँचेगा तो इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव होगा। बहुत शुक्रिया बशवाली साहब। मीडिया इंडस्ट्री के साथ जो कुछ हो रहा है, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता है, सबको पता है, ये सारे दोस्त हैं। तो जिन लोगों को यहाँ बैठना चाहिए था वो यहाँ पे है नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं मुझे नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इसको हम हाई प्रोफाइल में उठा के ले जाएँ। यहाँ जो सजेशंस आ रही हैं उसके सही अंदाज़ा हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है शमसी साहब, मुझे बताएं पिछले 30-35 साल से आज तक के जो हालात हैं और आज जिन नताइज से हम जिसको भुगत रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है। मुझे सीधा 10 वजूहात बता दें, वरना मैं बता देता हूँ आपको। जब तक उन वजूहात को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक वो हक़ाइक़ सामने नहीं लाएंगे, ये जो गठजोड़ है मीडिया मालकान का, ये जो गठजोड़ है ब्यूरोक्रेट्स का और सियासतदानों का, ये जो गठजोड़ है सारा एक व्हीलचेयर बना हुआ है जो पिछले 30 साल से प्रेस क्लबों के साथ व्हीलचेयर बनता जा रहा था, ये उसका हिस्सा थे। जब तक इन हक़ाइक़ को सामने नहीं लाएंगे, जब तक उन ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं देंगे और उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, फिर कहूँगा प्यूरिफिकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, प्यूरिफिकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द जर्नलिज्म। अपनी यूनियनिज्म को प्यूरिफाइड करें, प्रेस क्लब को। आए मेरे साथ यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं इस महफिल में आपको उंगली उठा के बता सकता हूँ, ही इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट, ही हैज़ नो राइट टू इवन इन दिस प्रेस क्लब। आज मैं आपको बताता हूँ प्रेस क्लब में कौन 80% ऑफ द पीपल दे आर एंजॉयिंग हियर, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। जब आपके हालात ये हैं तो फिर आप बात करते हैं कि भाई हमारा जिम्मेदार कौन है। जब तक आप अपने इदारों को साफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप तंजीमों को साफ़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल क्यों आप कमज़ोर हो चुके हैं। आप लिसानी तंजीमों में बढ़ चुके हैं, इलाकाई तंजीमों में बढ़ चुके हैं। पर्सनल वो जो खातून ने बात की है, अब तंजीम साजी नहीं है। मुझे याद है मेरा दस्तूर से कोई ताल्लुक नहीं था, ना मैं कोई पैदाइशी दस्तूरिया हूँ। मैं 90 में आया था और मुझे दस्तूर का कार्ड मिला, आज भी दस्तूरिया हूँ। आज साहब बैठे हुए हैं, मैं आज साहब से भी मेरे इख्तिलाफात हैं, इनके साथ भी मेरे तफाज़ात होते हैं। उस वक्त भी बात करता था जब मैं नवाब में होता था, आई साहब तशरीफ रखते हैं। आज भी जब मैं आ रहा था, आई साहब मैंने क्या बात की, वही बात, ये उसूली बात है। अगर कोई नाराज़ होता है 100 दफ़ा हो जाए, लेकिन हम खून के आंसू रो रहे हैं और ये रोना उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक वो वजूहात 5 से 10 वजूहातें ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को बिठाएं, थिंक टैंक बनाएं, उन वजूहात को मुकम्मल करें, अपने इदारों को मजबूत करें, यूनियन को भी मजबूत करें, प्रेस क्लब को मजबूत करें। मैं कहता हूँ 2 जर्नलिस्ट 90s में जब रोड पे आते तो वज़ीर दाखिला मौजूद होता था। आज क्यों भट्ट साहब आपने पकौड़े बनाए थे प्रेस क्लब के अपना पार्लियामेंट के बाहर, जो एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी मैंने पढ़ी थी, मैं सबके सामने बयान करता हूँ, आपको बता देता हूँ। उसमें क्या था, सीधा जर्नलिस्ट दर्जनों, मैन जर्नलिस्ट दर्जनों, वर्कर्स सैकड़ों।
जब चीज़ें जर्नलिस्ट दर्जनों हो, IB की रिपोर्ट हो, ISI की रिपोर्ट हो, पुलिस की हो, स्पेशल ब्रांच की हो, तो फिर कौन आपकी बात मानेगा? हाँ, अगर उसमें वर्कर्स ना हो, अगर उसमें बाहर की शहरी ना हो, अगर उसमें नॉन प्रोफेशनल ना हो, 15 जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के से चले जाएं और पार्लियामेंट के गेट पे बैठ जाए, मैं कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म ना है ज़ैद मशवानी का कि ना काट के रख दो। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है 90s के बाद, जब हमने टांगा पार्टी को सहाफ़त का दर्जा दे दिया, जब हमारे पास ये वाली सजेशन आई कि भाई की, तो हमारे हालात यही होंगे। इनसे पूछे कहाँ से आए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ, अपने हिसाब में उन्होंने ठीक कहा होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। अपना मायार खुद बनाएं। बहुत सी बातें हैं, बोलूँगा 2 घंटे गुजर जाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन वो वजूहात जिसकी वजह से इदारे कमज़ोर हुए हैं, वो लोग जिनकी वजह से इदारे कमज़ोर हुए हैं, और वो लोग जो इस माफिया का हिस्सा थे आज भी हैं, वो लोग जो माफिया का हिस्सा रहे हैं आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे, जब तक उनको ठीक नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल, हाँ कानून साजी इज़ द बेस्ट। एक वजह उसकी है, पार्लियामेंट में कानून साजी होनी चाहिए। क्यों? ये डमी किस्म के अखबारात के, माहनामों के, रोजनामों के और सालाना के और शशमाई के ये धड़ाधड़ जो डिक्लेरेशन जारी होते हैं, इसका भी कानून होता है ना? ये नहीं होता। ये कानून ख़त्म कर दें। डिक्लेरेशन उस शख्स को मिलना चाहिए जिसके पास पैसा हो, जो सिक्योरिटी जमा करे, जो पेश की जो तनख्वाहें वो अदायगी का उसमें हक हो, और उसमें उन लोगों को 1992 में खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद में कानून बना था भट्ट साहब। उस कानून में ये था कि अगर कोई शख्स माहनामा निकालता है तो MA जर्नलिज्म 2 लोगों को रखेगा। मुझे नहीं पता अब वो कानून है या नहीं, रिवर्स हो गया। मौजूद है। मेरी गुजारिश ये है कानून बन सकता है, बनते हैं, और जब तक कानून नहीं बनेंगे, पार्लियामेंट के लेवल पे आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इन जो मुख्तलिफ किस्म के अनफेयर मीन्स से लोग आते हैं, और फिर वो एक अखबार है जिसके मालिक को, जिसके एडिटर को भी नहीं चाहता कि प्रेस क्लब के अंदर इन हो जाए, उसके 15 लोग यहाँ के मेंबर क्यों है? ये चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो तवज्जो तलब है, हल तलब है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, शोर शराबा करते रहेंगे। हाँ, एक खूबसूरत, मुझे खुशी है भट्ट साहब आए, मुझे खुशी है आप तशरीफ लाए, मुझे खुशी है बहुत सारे तशरीफ होती हैं, हाई साहब तशरीफ, बड़े अच्छे दोस्त हमारे हैं, वो जितने स्टेक होल्डर हैं सबको बुलाएँ। ये जो ज़ाती इख्तलाफात है बस कुछ डालें, और जो मुश्तरका जो वजह थे उसके लिए एक थिंक टैंक बनाएँ। वो वजूहात जो मैंने गुजारिश की हैं या जो बाकी दोस्तों के ज़हनों में है वो सामने लाएँ। उसके बाद फिर जो आप कहेंगे आप आगे, हम आपके पीछे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शमशी साहब आपको, मौलवी साहब को मुबारकबाद कि आप पहले भी ऐसे इकदाम करते हैं, आइंदा भी करेंगे, इस वक्त भी करके दिखा दिया आपने, इकट्ठे बैठे हुए सारे। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे कहा कि लॉन्ग टर्म भी करें, लेकिन एक शॉर्ट टर्म करा दें। एक तजवीज़ है कि तनख्वाहें लेट होने से बचाएँ। जो कुछ भी हो रहा है तनख्वाहें लेट होने पे हो रहा है, परेशानी प्रयास किया है, अभी कोई और भी जा सकता है। मैं रोज़ रात को आता हूँ प्रेस क्लब, भट्ट साहब को पता है, यहाँ पे सब इर्द गिर्द के लोग, अखबारों के लोग आते हैं प्रेस क्लब खाना खाएं रात को 5-5 रुपये इकट्ठे करके खाना खाते हैं। आप ये हाल हो गया है तनख्वाहें लेट होने से। हमारी तंजीमें जो है PRA है, PPF, हमें RIU भी तजवीज़ आएगी, बैठे हुए हमारे साथ पता है कि इसको किसी तरीके से ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में डालें, पार्लियामेंट को डालें, तनख्वाहें लेट होने से एक दफ़ा रोक दें, मामला बेहतर हो। एक ऐसे टॉपिक पे बात शुरू की है, और जो आजकल अलमी है हमारा कि जो साथियों के साथ जो कुछ हो रहा है, और मशवानी साहब ने एक ऐसी बात की जिसके मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, पुराने दोस्त हैं, मुझे भी 30 साल हो गए हैं सहाफ़त में, और आप हमारे सीनियर्स में से हैं, तो 30 साल से ये सिलसिला एक जारी है कि जो तनख्वाहें हैं जो मुलाजमीन को, ख़ास तौर पे जो नीचे लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे सब एडिटर्स हैं, अब तो वो राय नहीं है, जैसे भाई ने बात की थी, और रिपोर्टर्स वगैरह की जो तनख्वाहें, ये शुरू से ही ये कोई राय मामला है। लेकिन हमें इन चीज़ों में अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जो लोगों ने अच्छे काम भी किए, जैसे अनवर रज़ा अपने नवाज़ रज़ा साहब थे, इन्होंने अपने दौर में अपना वो किया होगा, कोशिशें की होंगी। आपने मतलब अपने दौर में बहुत अच्छा शुरू से ही कर रहे हैं, आप अपने तौर पे आपने जो साफ़ी हज़रात उनके लिए काम कर रहे हैं। अफजल भट्ट साहब हैं, वो भी अपने तौर पर जो काम कर ही रहे हैं। मैं खाली एक बात पूछूँगा कि आप आज अगर किसी चैनल में नज़र नहीं आया तो उसकी वजह क्या है? वही वजह नज़र आती है कि आपका ज़ाहिर मालकान के साथ आपकी नहीं बनी। अफजल भट्ट साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं,
इनसे पूछेंगे ये क्यों नहीं आजकल किसी चैनल में नजर आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि अगर या तो ये तंजीम चलाएंगे या फिर किसी जाके चैनल पर बैठ जाएंगे। आपका भी यही हाल है, आप सब लोग अपने तौर पर काम करते आ रहे हैं और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है अपने तौर पर इलेक्शन भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अपने अपने तौर पर लड़ने भी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इस मामले में हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और जितने भी हमारे जो साफ़ी हज़रात इस टाइम जो मुश्किल का शिकार हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, जो भी उनके लिए हमें सबको इकट्ठे होकर एक लाएमल तय करना पड़ेगा और तब जाके ये सारे जो मामला हल होंगे। लेकिन ये आज का फोरम बहुत अच्छा है, इस तरह के फोरम होने भी चाहिए और उसके लिए कोई मजबूत लाएमल तय करना चाहिए। कोशिशें सब करते हैं। भट्ट साहब 1 साल कबल जिस बीमारी से ये गुजरे हैं, ये हमें, क्योंकि मैं पहले ये कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मुझे बताएं कि भट्ट साहब क्यों बीमार हुए, कोई वैसे इनको कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन बारिशों में लोगों के लिए कि भाई इनको तनख्वाहें दी जाए, उन बारिशों में मुझे पता है कि हम साथ ही होते थे कि कितनी बारिशें होती थी और ये वहाँ पे आके ये बैठ जाया करते थे और वो बीमारी डॉक्टर्स ने मतलब बताया भी कि आपको इस वजह से आपको ये जाके बीमारी लगी है कि इतना अर्सा आपने इतने सख्त आपने जो काम किया है और उसके बाद ये कितना हॉस्पिटल में रहे। तो ये चीज़ें अगर कोई काम करता है हमें उनको सराहना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ जिस तरह सब ने कहा कि हमें मिलकर इन लोगों को जितने भी साफ़ी हज़रात इस टाइम मुश्किल का शिकार हैं कोई फाइन कायम किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए और एक लाएमल मजबूत लाएमल तय किया जाए ताकि इनकी जो तनख्वाहें इनको बर वक्त अदा हों। और चाहे वो चैनल्स, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आस्ता आस्ता बिल्कुल ख़त्म हो रहा है जैसे प्रिंट मीडिया है, लेकिन वो जो आपके साफ़ी हज़रात मौजूद है ना, अगर उनका कोई मसला है तो उनको किसी और जगह एक्सेस कराने के लिए हम सबको कोशिशें करना होंगी। बस, थैंक यू। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझी थी, क्योंकि पहले तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, शमसी साहब ने ये एक इस वक्त कोशिश की है, लेकिन मैंने सिर्फ ये कोशिश कहा है और मैं समझती हूँ कि एक अच्छी कोशिश है कर मिल बैठती है। एक चीज़ हमें बिल्कुल सामने रखनी चाहिए कि इस वक्त मसाइल जो हैं, बेरोज़गारी सबको दिखाई दे रही है, तनख्वाहों का ना मिलना सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकतन जो मसले हैं और जिस पे हमारी सबका इत्तफाक होना चाहिए, वो मैं समझती हूँ कि हम अपने आप से अपने मसाइल से वाकिफ़ हैं। यहाँ भी हम बैठे हैं, अब चंद लोग रह गए हैं, अभी आपने देखा कि दिलचस्पी अपने मसाइल में ये है कि लोग निकल जाते हैं, नहीं सुनना चाहते, अपने मसले को जानना भी नहीं चाहते। ये बहुत तकलीफ दह बात है कि आप अपनी चीज़ तो देखें कि आपके लिए क्या बात हो रही है, आपको भी इसमें किस तरह शेयर करना है। ये यहाँ मुख्तलिफ़ औकात में मुज़ाहरे भी होते हैं, इत्तफ़ाक़ है कि कोशिश हम भी करते हैं आने की, कभी नहीं भी आ सकते। मैं यहाँ आके देखती हूँ कि वो 20, 25, 30, 40 के सिवा जो है लोग आने को तैयार नहीं हैं, अपनी बात समझने को तैयार नहीं हैं। फिर उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? मसाइल बढ़ते चले जाएंगे जब हमारा अपना शेयर इसमें नहीं होगा। हमें, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि 2 बातें उस पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हमें किस पे इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। एक तो ये अपने हालात का, इस पे कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि हमें इस पे मिल बैठना चाहिए। इसमें कोई तफ़र्क़ा नहीं है। अगर ये नवाज़ रज़ा साहब बैठे हैं, अफजल भट्ट है, आसिफ है, अगर आप इनसे पूछें क्या आप हालात कार के तस्लीम करते हैं कि एक बेहतर होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। दूसरा ये है आज़ादी इजहार जो है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लें, उस पर आप इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे अगर कोई जर्नलिस्ट समझता है या कोई तंजीम समझती है कि इस पे कोई इत्तफ़ाक़ नहीं करती, तो मेरा ख़्याल है कि फिर तो तंजीम हम नहीं उसको कह सकते। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहूँगी, बहुत अहम बातें जो हैं कि ये मशवानी साहब ने भी बहुत अच्छी तजावीज़ आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने पहली दफ़ा देखा कि इमराना ने बड़ी एक्टिवली इसमें बात की है, बहुत अहम बात की है। और मैं ख़वातीन से हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने विजन के साथ आगे अपने आप को मुतारिफ़ कराएँ। अभी ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने का, और मैं ये समझती हूँ कि आज हम जब मिल बैठे हैं, अभी आप उठ जाएंगे, उसके बाद मैं बिल्कुल वसूख से कहती हूँ, मेरा तजर्बा ये कहता है, आप ना मिल बैठेंगे और ना कुछ करेंगे। आप ये फ़ैसला करें कि बहुत हमारे सीनियर, मेरे बहुत मोतबर जो हमारे सीनियर है उनकी डेथ हुई है, अभी यही जनाजा है, आप लेकिन कोई सॉलिड किस्म की कोई चीज़ तैयार करके जाएं। अगर वहाँ से जनाजे के आने के बाद भी हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आप बात उसको कंप्लीट करें, क्योंकि इजलास आपका लेट हो गया और उसमें बिल्कुल जनाजे के लिए चलते हैं मेरे ख्याल में। और उसके बाद प्लीज़ आके बैठें, कोई मुत्तफ़िका कोई लाए अमल लेके, कोई रिटर्न लेके ब्लैक एंड वाइट में यहाँ से जाएं। ये नहीं है कि बस ठीक है जनाजे में चले गए, और मैं यकीन से कहती हूँ उसके बाद ना आप बैठेंगे और ना ही आप किसी किस्म की बात करेंगे, फिर हम वहीं अलिफ पे बैठे होंगे। कि सारी बातें बहुत अच्छी हैं,
खुदा के लिए कोई एक कमेटी बना दें जिसमें तमाम ग्रुप्स का एक एक बंदा जो है वो शामिल हो और ये किसी तरफ करें, और जहाँ इस प्रेस क्लब में खड़े हैं इसके इंतखाबात भी करवा दें। आज ये मुख्तलिफ बात हो रहा है। एक आपका बुलाने का तमाम दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे। पिछले एक अरसे से इस बात की शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी कि एक नशिस्त ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये तमाम मामलात बगैर किसी हुज्जत के जो है वो कहे जाएं और उस पर अमल दरामद के हवाले से कोई लाएमल तैयार किया जाए। दो बुनियादी इशू हैं इस वक्त, एक है आज़ादी सहाफ़त का और दूसरा है सहाफ़ी की बका का। इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप के दौर में जो कुछ होता रहा वो तो एक माजी का किस्सा है, आप लोगों ने सबने देखा है, आप सीनियर्स हैं। लेकिन ये जो दौर है जिसको जमहूरी दौर कहा जाता है, इसकी उम्र कोई 10-12 साल मुशर्रफ ईरा के बाद। इसके दौरान जो मीडिया की आज़ादियाँ थीं और जो मीडिया ने आज़ादी हासिल की थी मुशर्रफ दौर में, उसको बवजूद जो है वो फलने फूलने नहीं दिया गया। मैं 23वां बरस है जर्नलिज्म में हूँ और बाई चॉइस मैंने ये जर्नलिज्म तैयार किया। कुछ लोग ज़ाहिर अपने अपने मकासद लेके आते हैं और मकसद सिर्फ था कि वॉइसलेस की आवाज़ बना जाए, इसीलिए अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी साथ में जारी रखा और पढ़ाने का भी सिलसिला अलहमदुलिल्लाह जारी रखा। लेकिन जर्नलिज्म के अंदर हमने जो तरवीज होनी चाहिए थी, जिस प्रोग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए था, हमें अपनी कोताहियों की तरफ भी तो एक नज़र डालनी चाहिए कि हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था जंग अखबार से, अगर किसी ने, मैंने शुरू किया और बाकी दोस्तों ने भी अखबार से काम शुरू किया जब टेलीविज़न नहीं था, सिर्फ PTV हुआ करता था, तो हमें ये समझना चाहिए था कि हर एक प्रोफेशन के अंदर एक ख़ास टाइम आता है जिसके बाद एक अगली स्टेज आती है और वो चेंज ओवर होता है जिसको हम कहते हैं। एक नई प्रोडक्टिव वे में आप प्रोग्रेस करते हैं और उस स्टेज पे जाने के लिए आपको तैयारी बांधनी पड़ती। ज़ाहिर है जब हम TV में आए अखबार से तो उस वक्त एक ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद फिर हमने खुद सीखने का अमल शुरू किया और सीखते सीखते आज जो प्राइवेट मीडिया है वो 18 साल का हो गया, मैच्योर हो गया। लेकिन आज हमें लाले पड़े हुए हैं कि वो TV बंद हो रहा है, तो ये कोई मतलब किसी और का कसूर तो है ही नहीं, ये कसूर तो हमारा अपना है, क्योंकि हमने उनके हाथ में अपनी बागडोर दे दी। हम जिनको ये समझ रहे थे कि वो पार्लियामान में एक आइन और एक कानून के तहत हमारे लिए भी, हमारा भी ख्याल करेंगे, हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, उनके लिए बात करेंगे, आर्टिकल 19 की बात होगी और उसके तहत जो आज़ादियाँ वादा की गई हैं 73 के आइन के अंदर वो हमें दी जाएंगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिसने आवाज़ उठाई उसको या तो मार दिया गया या फिर उसको किसी न किसी तरीके से धमका के भगा दिया गया, और जो रह गए वो अपना रास्ता बदल बदल के कभी इधर तो कभी उधर काम करते रहे। तो ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने कुछ दोस्तों की बातें सुनी हैं इससे पहले, नमाज़ जनाज़ा से पहले, कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सारा तकदीर बदल जाए सारी, ये कोई और नहीं बदलेगा। मैंने पिछले दिनों एक वर्कशॉप का एहतमाम किया यहाँ पे, तो कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे आया कि यार लोग मर रहे हैं और आप ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। आपने एक ट्रेनर को बुला के तो क्या ट्रेनिंग देनी है यार, आप कुछ करें, कुछ लोगों की सैलरी से करें। आज यहाँ पे ये बात हो रही है कि आज हम कुछ प्रोफेशन के हवाले से बात करें क्योंकि लोग मर रहे हैं, तो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं असल में अनफॉर्चुनेटली कि हमने करना क्या है। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आज़ादी के हवाले से तो एक अलग इशू है, एक अलग बहस है जो कि हमारा ही सब्जेक्ट है, जिस पे हमें खुद एफर्ट करनी होगी। पार्लिमान पे अगर हम यकीन रखते हैं, अगर हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेंथन करना है इस सिस्टम को, इसके अलावा जितने निज़ाम हैं वो हमें सूट नहीं करते हैं और ना ही उनकी कोई सर्वाइवल होती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक ऐसी कमेटी, मेरी सजेशन होगी कि तमाम ज़ाहिर ग्रुप्स की अपनी अपनी सियासत होती है, लेकिन इस मामले के ऊपर कम अज़ कम कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा ही नाजुक मामला है, हमारी फैमिलीज़ का इशू है, हमारी सर्वाइवल का इशू है। इस पर एक मैं भी शेयर कर दूंगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अभी तक लॉज नहीं बन सके 18 साल, आप अंदाज़ा करें। तो फिर आपके लिए कौन सिंसियरली आपके लिए कोई बात करेगा? हम खुद नहीं कर सके। मैंने जब मैं यहाँ पे था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब में, तो मैंने एक बनाया, पूरा पैक्ट बनाया और पिछली गवर्नमेंट के हवाले किया, स्पीकर से जाके मिले, वो उन्होंने गुम कर दिया। तो हमें ये चीज़ें
برابری کی بنیاد پہ آپس میں شیئر کر کے کہ کیا کیا ہماری آزادیاں سلب ہوئی ہیں اور واپس کیسے مل سکتی ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا ہے جو کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ ٹریننگ یا جو ایسا نیا ایرا جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کو بند کرنے کا بندوبست حکومت اب کری. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب ایک نئی لیجسلیشن بھی آ رہی ہے اور اس کے لیے 3-4 مہینے نہیں 1 سال سے اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. اور ابھی کسی بھی وقت جیسے ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کوئی قانون آ گیا ہے تو یہ بھی ایک قانون آ جائے گا جس میں آپ کی جو مزید آزادی جو آپ کو ابھی ملی ہے اور سب لوگ یوٹیوبر بن گئے ہیں یا ایک آزاد نیوز مین بن گئے ہیں وہ بھی سلب خدا نخواستہ امکان ہے. لہٰذا ابھی سے اس پہ کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا کے لاز ہیں اس کے ساتھ سنک کیا جائے سوشل میڈیا کو اور اس کے لاز میں اپنی آزادی تلاش کی جائے. یہ جڑا ہوا معاملہ ہے اور ہم اپنی ٹریننگ خود کریں. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل میڈیا کیسے سروائیو کر رہا ہے. وہاں پہ کیا یہ جو ہمارے ہاں تو ابھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہاں تو 10 سال پہلے آ جاتی ہے ایڈوانس میں آ جاتی ہے تو وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں ان ماڈلز کو فالو کرنا چاہیے. انڈیا کے اندر بھی یہ فالو ہو رہا ہے. جب میں پہلی دفعہ 2004 میں انڈیا گیا تو وہاں پہ 100 چینلز تھے. صرف یہاں پہ ایک جیو اور ایک ایئر وائی تھا. آج بھی وہاں پہ 150 چینل تو ان کا انٹرنیشنل چینل ہے نیشنل انٹرنیشنل اور باقی جو ان کے جغرافیہ کے حساب سے ہزاروں چینلز ہیں. دے آر سروائیونگ. ان کو تو کسی نے نہیں بند کیا. اب یہاں پہ میں اگر کوئی بات کر دوں گا تو شاید وہ ایشو بن جائے. لہٰذا ہمیں اس بات کو ضرور اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ ڈیموکریسی کا تحفظ بھی ہم ہی کریں گے. یہاں کسی اور نے نہیں کرنا. سیاسی جماعتوں کا رول آپ کے سب کے سامنے ہے. ہم کو برا نہیں ان کو کہہ رہے لیکن مجبوری ہے ان کی. لہٰذا یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں اس معاملے کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو ابھی ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں جہاں پہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ لیجسلیشن کی طرف جایا جائے. قانون سازی کے بغیر آپ کو کوئی چھتری نہیں ملے گی, آپ کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گی. آپ جب اپنے لیے کوئی لیجسلیشن کروانے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری سروائیول بھی ہوگی. اور جو ینگسٹرز آ رہے ہیں یونیورسٹیز سے آپ دیکھیں کہ بلک میں بچے آ رہے ہیں. ہر ایک سیمسٹر سے کم از کم 1000 سے 500 بچہ نکل رہا ہے پڑھ کے. تو وہ یہ ہمیں آئیڈیلائز کرتے ہوئے نکلا تھا کہ یار یہ میڈیا ہے ہم اس پہ جا کے اپنا کوئی رول پلے کریں گے. یہاں آئے ہیں تو جو کرنے والے کام کرنے والے وہ بے روزگار ہو گئے. یہ میرے ساتھ متی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کلیگ ہیں. کیا نہیں ہوا چینل بند؟ کیا یہ نہیں ہوئے بے روزگار؟ یہ حقیقت ہے. اب اس کو ہم جس طرح کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے 4-4 مہینے سے سیلریز نہیں ہے تو پھر ہم اپنی سروائیول کا کوئی تو راستہ تلاش کریں نا. ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے رہیں گے تو بس ٹھیک ہے کٹتے رہیں مرتے رہیں. تو یہ بہتر ایک طریقہ ہے میرے خیال میں کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, کمیٹی بنائی جائے. سردار شوکت صاحب انتہائی مشکل دورائے پہ یہ اجلاس یہاں پہ بلایا ہے اور تمام جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو کو آپ نے یہاں انوائٹ کیا ہے اور یہ ایک خوشائند اقدام ہے آپ کا. اور ہمیشہ شمسی صاحب جو آپ کا کردار رہا میڈیا ورکرز کے حوالے سے صحافیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بغیر کسی لالچ کے جب بھی کسی ورکر کے ساتھ کہیں زیادتی ہوئی تو آپ نے ہمیشہ اس کی حق میں آواز اٹھائی. اور آج بھی آپ جو یہاں پہ آپ نے میٹنگ بلائی ہے اس حوالے سے جو پارٹیسپینٹ یہاں پہ موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں یہی کہنا چاہتا ہوں, لمبی بات نہیں کروں گا, کہ ہماری لڑائی جو ہے 2 موضوع پہ ہے. ایک تو ہم نے اپنے دوستوں کے لیے جن کو بے روزگار کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے ہم نے تمام صحافتی تنظیموں نے مل کر ان کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور دوسرا جو نئی ٹیکنالوجی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کی وجہ سے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور ہم تو ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہیں لیکن ایڈوانس کنٹری ہم سے تو بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں. تو ان سارے ٹولز کا ہمیں جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنا ہوگا اور نئی ورکشاپ. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیشنل پریس کلب نے RIUJ نے اور ساری صحافتی تنظیموں نے کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اسکل اتنی مضبوط ہو کہ اگر ہم یہاں سے کہیں بے روزگار ہو بھی جائیں تو دوسری فیلڈ میں ہمارے پاس موقع ہو تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کی جو فیسز میں پرابلم آ رہی ہیں جو کرائے کے مکانوں میں تو تاکہ ہم اس معاشی دباؤ سے نکل سکیں. اس حوالے سے میں یہی تجویز دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں یہاں پہ PFUJ کے سابق صدر افضل بٹ صاحب بیٹھے ہیں, نواز رضا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, RIUJ کے سیکرٹری یہاں پہ بیٹھے ہیں, متی اللہ جان صاحب بیٹھے ہیں اور تمام سینئر صحافی یہاں پہ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں یہی کرنا چاہتا ہوں, آپ سے یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ورکشاپس کا ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ انعقاد کرنا چاہیے. اس کے لیے دوستوں کو بلا کے لانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے تو میری یہی درخواست ہوگی کہ ہمیں
इस माशी दबाव का मुकाबला करने के लिए जो है वो एक तो अपने जो एहतजाज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाना चाहिए जहाँ कहीं किसी को निकाला जाता है, और दूसरा जो है जो जदीद तकाज़े हैं, जो नए टूल्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करके, उनसे वाक़फ़ियत हासिल करके, उन पर दस्तरस हासिल करके तो मौजूदा जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आपने सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा किया है, और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर बात होना चाहिए, और एक नुकाती एजेंडा हम सब के सामने है जिस किस्म के बहरान से हम दो चार हैं, उसमें मेरे ख्याल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जबकि हम ये इत्तफाक़ करते हैं कि एक नुकाती एजेंडा हो और सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कैसे होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का कदम होते हैं, स्टेप बाई स्टेप। इसमें तो हम सब इत्तफाक़ करते हैं कि हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो मेरे नज़दीक कुछ तजावीज़ हैं, मैं किसी से कोई गिला नहीं करूँगा, ना भट्ट साहब से, ना शकील करार से, ना हाजी साहब से। मैं एक तजावीज़ दे रहा हूँ कि इसका एक निकाती एजेंडे पे अमल दरामद करने का क्या कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अफजल भट्ट साहब भी हैं और सारे दूसरे ग्रुप के दोस्त भी हैं, वो ये यकीन दहानी कराएँ कि आइंदा एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो प्रेस क्लब की फहरिस्त है, वो जो मुश्तरका फहरिस्त है, वो जारी कर दी जाएगी एक हफ़्ते के अंदर अंदर, क्योंकि अब टाइम लाइन करना है, क्योंकि वो एक निकाती एजेंडा बड़ा अहम है और उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पे एक मुश्तरका फहरिस्त जिसमें कामल लोग हैं वो जारी की जाए, फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए, और इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है हिकमत अमली अभी से बना ली जाए क्या करना है हमने इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन के फ़ौरन बाद उस हिकमत अमली पे अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। क्योंकि 3 हफ्ते भी अगर है हमारे पास, तो एक हफ्ते में लिस्ट फाइनल करें, अगले हफ्ते में आप लोग इलेक्शन करवाएं, और ये इलेक्शन को रवायती ना कराएं कि बहरान का दौर है, लोग बेरोज़गार हैं, उनके जेब में पैसे नहीं हैं, वो शायद वोट डालने भी ना आ पाएंगे। इतने हालात में कोई कैंपेन ना चलाएं, कोई पैसा ना खर्च करें, एक दिन मुकर्रर करें, सारे प्रेस क्लब वालों को बुला लें, इधर आके वोटिंग करा दें और वो इलेक्शन करवा लें। कोई कैंपेन करना तो वैसे ही है ना कि आप जनाजे के ऊपर जश्न मना रहे हैं। जो मीडिया के हालात हैं, इसमें कैंपेन चलाना भी मैं कहता हूँ कि गुनाह होगा। जिस तरह हम जा के लोगों से किस मुंह से तो वोट मांगेंगे, पहले तो ये बताए ना। ये जितने हम लोग बड़े लीडर हैं, हम किस मुंह से दफ्तरों में जाके कहेंगे जी हमें वोट करो। हम सारों को झूठे पड़ रहे हैं, मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, हालात इतने ख़राब। तो एक हफ्ते में लिस्ट फाइनल करें, दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कराएं, तीसरे हफ्ते में 1 पॉइंट एजेंडा पे पूरा प्रेस क्लब की क़यादत, RUJ की क़यादत, PSUJ की क़यादत, सब मुतहद होकर निकल खड़े हो उस पर अमल दरामद। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है प्लीज़ कि अगर ये एक हफ्ते के अंदर ये लिस्ट प्रेस क्लब की मुश्तरका जो नामों की है, अपने शहरी से भी मेरी बात हो रही थी, अगर ये अभी जारी करवा दें तो ये एक निकाती एजेंडे के ऊपर शमसी साहब आपकी क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं, इलेक्शन के फ़ौरन बाद उस पर हम अभी प्लानिंग अभी से शुरू करते हैं क्या करना है इलेक्शन के बाद, किस जगहों पे एहतजाज करना है, किस जगह पे क्या किस तरह से स्ट्राइक कॉल करनी है, फिर पूरे पाकिस्तान में क्या स्ट्राइक कॉल करनी है, पेन डाउन स्ट्राइक करनी है, कैमरा शटर डाउन स्ट्राइक करनी है, या ब्लैकआउट करना है TV चैनलों का, अभी से हिकमत अमली बना लें। लेकिन उसका पहला कदम यही है कि खुदा के लिए ये लिस्ट पूरी करें और प्रेस क्लब को आप एक नई मुतक़िब बॉडी दें जिसके ऊपर कोई ये सवाल ना उठा सके कि आपका तो कोई मैंडेट ही नहीं है कि आपको तो मुद्दत ख़त्म होगी, आप किस मुँह से तहरीकें चला रहे हैं। अब देखें ना, हम लोग इधर बैठे हैं, कोई तड़े इधर बैठे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेस क्लब में कोई एक मुश्तरका क़यादत ही नहीं है। इसमें आइनी और कानूनी तौर पर हम अखलाकी तौर पर खो चुका है प्रेस क्लब की बॉडी अपना वजूद। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि आप मुश्तरका लिस्ट निकाल लें। अब देखें ना, आपके भी 2500 बंदे होंगे, उनके भी 2600 बंदे होंगे, मुश्तरका लिस्ट में 2200 होंगे, 300-400 का जो फ़र्क है उस पर आप अलहदा कमेटी बना दें, कम से कम इलेक्शन का ऐलान करें और करवाएं जो करवाना है। इस वक्त ये झगड़ा लिस्ट वाला टाइम नहीं है कि लिस्ट के ऊपर झगड़ा करें। मेरी तजवीज़ है कि खुदा के लिए जो मुश्तरका नाम होंगे और जिनमें इख्तलाफ होगा उन सारों को शामिल कर रहे हैं, और जिनमें तीनों चारों ग्रुप कह रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए मेंबर, उनको निकाल दें। जिन पर सब इत्तेफाक करते हैं कि उनको मेंबर नहीं होना चाहिए, 100-150 है, 200 है, उनको आर्जी तौर पे आप एसोसिएट बना दें अगर बहुत है उनका, तो उनको सिर्फ कौंसल बोर्ड ना बनाएं। उन्हें क्या अगली दफ़ा देखेंगे जो नई पार्टी आएगी वो आपको डिसाइड कर ले। तो अगर आप एक हफ्ते के अंदर ये प्रेस क्लब की लिस्ट नहीं फाइनल करते तो शमसी साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन वो मौसर एहतजाज नहीं होगा, ये मैं आपको बस मेरी ये तकलीफ।
मेरा नाम हमजा फारूक है, एयरवाई में होता था। उसमें ये कि ये सारी कंपनी SECB में रजिस्टर्ड है। ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ डिक्लेयर करें। SECB को भी कहा जाए कि भाई आप इनसे स्टेटमेंट लें, अगर ये लॉस में चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, इतने अरसे से ये चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अगर ये लॉस में चल रहे हैं इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। मतलब सोर्स ऑफ फंडिंग तो नहीं पूछ सकते वो, लेकिन वहाँ ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये अपनी बैलेंस शीट जो है ये शेयर करें। और ये चीज़ जो है FBR से भी कही जा सकती है कि जी आप इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो निकलवाएँ और इश्तहारों को लिंक करें। बहुत ज़बरदस्त आई है और उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद भी होगा एक कमेटी की सूरत में। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार चैनल कितने पैसों में खुल जाता है। मैं कहता हूँ सिर्फ लाइसेंस के पैसे लो, लेबर मुफ्त में मिल रही है आजकल। वजह यह है कि हमारे जो लीडरान हैं वो मालकान के दोस्त भी हो गए। 15-20 लोग बाहर एक मुजाहरा करते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो मालकान के साथ बैठते हैं। हमें नहीं पता वहाँ पर क्या बात होती है क्या नहीं होती, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी बात होती होगी, कारकुनों के लिए बात होती होगी। तो मेरी तो यही तजवीज़ है कि सबसे पहले मतिउल्लाह के साथ मैं जाऊँगा कि इलेक्शन जितना जल्दी हो सके इसको कराएँ, ताकि एक प्रेस क्लब की एक शक्ल नज़र आए कि एक बॉडी यहाँ पर इलेक्ट हो चुकी है। पहले हम प्रेस क्लब आते थे, यहाँ साइन बोर्ड पे लगा होता था क्या प्रेस क्लब के मुख्तलिफ कारनामे कि इस साल हमने ये प्रोग्राम किए। आज आके देखा तो यहाँ तो लिस्टें लगी हुई चारों तरफ, यहाँ कोई तस्वीर ही नज़र नहीं आ रही आपको। जहाँ कहीं आप खड़े होकर नाम पढ़ रहे हैं, एक 4 लिस्टें लगी हुई हैं। बहरहाल ये इलेक्शन का करवाएं सबसे पहले तो, और दूसरा ये है कि आप लोग सीनियर्स हैं और हर लीडर को उस कमेटी में डालें, ताकि अगर वो काम ना कर पाए तो हम उससे सवाल पूछें कि यार आप क्यों नहीं कर पा रहे काम। लीडर लाजमी होने चाहिए, इन्हीं लीडरों को इस्तेमाल करें, कारकुन एक भी नहीं डालें, ताकि एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी हो। बस यही। जी बहुत शुक्रिया शम्स साहब, और आप सब लोगों का बातें तो काफ़ी सारी सब दोस्तों ने कर ली हैं, इससे पहले सेशन में भी हुई हैं, और मती ने बहुत अच्छी जो है वो तजावीज़ दी हैं। देखिए सियासत हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? जब बंदे ही नहीं रहेंगे, वो अदारे ही नहीं रहेंगे, तो फिर सियासत किस चीज़ की होगी? मादर के साथ आज हर बंदा अपनी इंडिविजुअल सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और किसी को किसी का कोई वो नहीं है। PFJ के लेवल पे देखें तो हम यहाँ पे एक मुजाहरा करते थे तो IFJ सबको जो है ना वो स्क्रू टाइट करता था। आज हमारा स्टेटस क्या है? एक प्रेस क्लब बचा था, आज उसको लोग किस तरीके से उंगलियाँ उठा रहे हैं वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ाहिर है हर बंदा जो भी सिंसियर होगा महसूस तो करता हो। जो ये भाईजान ने बात की ना कि डिजिटल मीडिया से क्या कमा रहे हैं, मैं इसी हवाले से एक दो चीज़ें दूँगा। एक तो ये है कि आज सेनेट से साथियों ने वॉकआउट किया है, 4-5 सेनेटर आए थे वहाँ पे, और अंदर जाके जो उन्होंने बात की वो सारा ब्लेम हमें कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने कोई पैसे नहीं दिए, पहले शुरू में बैकलॉग था, अब हमने क्लियर कर दी। आप बनाएं कमेटी, बनाएं अपने नुमाइंदे, फिर पीछे से कोई बोला जी कौन से नुमाइंदे को बुलाना है, वहाँ पे तो इतने धड़े हैं। तो ये भी हमारी एम्बेरसमेंट है, हमारी बेइज्जती है। अब 2-3 TV चैनल जो हैं अगर उनके इश्तिहारात का मामला है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसका वो नहीं करेंगे जब तक वो हमें नहीं करते। अब मसला सिर्फ ये है कि हमें खुद बोलना है। अपने अदारों में हम बैठे होते हैं, हम वहाँ पर बात ही नहीं करते। हम में से कितने हैं जिन लोगों की वो तनख्वाहें नहीं आई या नहीं आती तो अपने मालकान को आंखें दिखाते हैं या कुछ करते हैं। मैं मादर के साथ ये नहीं, सिर्फ हम जो जियो वाले हैं हम सिर्फ ये करते हैं, हम डंडा भी करते हैं। हम सुने तो सही ना, सुने तो हम डंडा भी करते हैं, हम स्ट्राइक भी करते हैं। ये मालकान को कहना कि हम चैनल नहीं चलने देंगे या स्क्रीन ऑफ कर देंगे, ये आसान काम नहीं होता वो, लेकिन हम इसके बावजूद उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें उसके हमारे ये उसमें वो लेटर में ये नहीं लिखा हुआ कि इश्तिहारात मिलेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी या हुआ। दूसरा, ये लोग 2 नंबरी ये कर रहे हैं कि जैसे डिजिटल मीडिया की उन्होंने बात की, उस पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उन्होंने तो ये एक एडिशनल उनकी इनकम हो गई है, ठीक है। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से कट लगा इशारात से, तो यहाँ से जो डॉलरों में कमा रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं। और सर आपने यूट्यूब का बताया है, फेसबुक अलग पे कर रहा है, इंस्टाग्राम अलग कर रहा है, ट्विटर अलग कर रहा है, गूगल प्लस अलग कर रहा है, और ये करोड़ों डॉलर अगर वो कर रहे हैं तो अरबों रुपए तो वहाँ से कमा रहे हैं। और ये सिर्फ वो बात कल कुछ दिन पहले किसी ने की थी कि अगर कोई बंदा 1 अरब रुपया कमा रहा था तो उसका 20 करोड़ रुपया वो कम हुआ है उसके मुनाफे में से, तो वो उसको लॉस शो कर रहा है। हमारी तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, आप जितने भी वो करें, सियासतें होती रहेंगी, लेकिन जितने भी हैं सारा एक मुश्तरका कमेटी बना लें। इससे बड़ा और मामला, लोग मरना भी शुरू हो गए। अब इससे बड़ी और कौन सी सिचुएशन होगी तो सारे इकट्ठे होंगे, मुझे बताएं आप। तो ये अपनी अनाएं ख़त्म करके कोई किसी एक मुश्तरका लाए अमल पे सारे इकट्ठे हों और कोई बेहतर, ताकि आगे से इसकी कम्युनिटी को खिदमत की जा सके। They are paid channels.
اور یہ پیڈ چینلز کی الگ پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. انہوں نے دوسرے نیٹ ورکس کو انہوں نے سیل کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے رائٹس, تو وہ الگ پیمنٹ ہوتی ہے. وہ سوشل میڈیا کے علاوہ پیمنٹس ہیں جو یہ شو نہیں کرتے. آپ ایک آخری بات کہ ہم مظاہرہ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کے خلاف, یہ مالکان کے خلاف, اگر کوئی اچھا اور مؤثر وہ پلیٹ فارم ہمارا ہو اور ہم سارے متحد ہوں تو ہم ان اداروں کو بھی, ہم فیس بک کو بھی لکھ سکتے ہیں, ہم یوٹیوب کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ یہ وائلیشن کر رہے ہیں, اور وہ جلدی عمل درآمد کریں گے نسبت کے یہاں پہ کچھ ہو. شمس صاحب یہ میں ایڈ کرنا چاہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ساری جو رجسٹریشن ہوتی ہے نا ان کی, یہ فیس بک کی ساری لنڈن میں ہوتی ہے, پیمنٹ وہیں پہ ہوتی ہے, لہٰذا وہ جو ارننگ ہے وہ یہ شو ہی نہیں کرتے. لیکن آپ آن ریکارڈ دیکھیں جو کہ ٹیکنیکل سمجھتے ہیں, دیکھیں 25 یا 30 لاکھ ڈالر کمانا کا مطلب ہے کہ یہ کتنے پیسے بن گئے. یہ تو ساری تنخواہیں اس یوٹیوب سے نکال لیتی ہے, اور یہ فیس بک مونیٹائز ہے لندن میں, پاکستان میں نہیں ہے, لیکن یہ رجسٹرڈ کرتے ہیں, ایڈمن بناتے ہیں لندن سے, تو وہ بھی مونیٹائز ہے, بلکہ وہ پے زیادہ کرتی ہے. انسٹاگرام یہ سارے تو دے آر ارننگ مور, لیکن یہ بتاتے نہیں اسی کھاتے میں جو اشتہار جو ٹپکل اشتہار ہے نا جو لیتے ہیں گورنمنٹ سے اور پرائیویٹ سے, تو وہ ڈیفینیٹلی کم ہوا ہے. لیکن جو یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا سے کما رہے ہیں اس کا حساب یہ بالکل نہیں دیتے. آپ اس کو ایڈ کریں, بلکہ یہ جو انہوں نے تجویز دی ہے ستی صاحب نے, دس از ویری گڈ. وی کین رائٹ ٹو آل دیز وہ جو ادارے ہیں کہ دس از دا سچویشن ان پاکستان اینڈ پلیز اسٹاپ دیم پیئنگ لائک what we can write. لنچ کر لیں. صرف یہ تجویز, جی بالکل کوئی بحث نہیں, صرف تجویز یہ دے رہا ہوں کہ جب تک آپ جو ہے وہ ایک کوئی کمیٹی جو ہے وہ بنا کے نہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کمیٹی بنا کے جو ہے متفقہ طور پر فیصلہ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت اور میڈیا مالکان ہیں, میڈیا مالکان کو کے حوالے سے بھی, میڈیا مالکان کے حوالے سے شمسی صاحب جب تک ان کو کوئی مؤثر جواب نہیں آئے گا اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی پریس کلب جو ہے اس کے انتخابات تو کرا نہیں سکتے, کوئی خود کمیٹی صحافی بنا نہیں سکتے, تو ہمارے ساتھ کیا بات کریں گے. اور جو بات کرنے والا ہے وہ جب نکلتا ہے تو لیڈران کہتے ہیں جی ہم کوئی نہیں مسئلہ, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے ساتھ ہوا ہے پبلک میں, آپ کہتے ہیں بات نہیں کرتا, میں نے کی تھی ادارے کے اندر کھڑے ہو کے, کیا ہوا تھا, ہمارے سٹنگ سیکرٹری صاحب جو تھے وہ وہاں ہوتے ہوئے وہاں نہیں کھڑے ہو سکے. اب اسی مسئلے کی بات کرتے ہیں. ہم تو میں نے شروع سے دیکھا کہ اب جو روزگار ہونے والے ہیں ابھی تو یہ شاید کام شروع کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں سیاح شمسی صاحب کا شکر گزار ہوں. یہ جو آج کے دور کی سیاست کے لوگ ہیں جتنے ان میں سے یہ اس دور کے میرے ساتھ ہیں, 25-30 سال پہلے کہ ہم ایک دوسرے کے رائول رہے ہیں, اور پھر رائول ایسی بھی نہیں تھی کہ ہم کوئی بھی آپ سے مل کر مل نہ بیٹھے. آج انہوں نے بلایا, میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں گا. میری کمر میں تھوڑا سا پرابلم درد ہے, مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے. میں صرف ایک بات مختصر انداز میں مختصر بات کروں گا کہ ایک بات یہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. واٹس ایپ بیٹھے ہیں. دوسری انہوں نے پریس کلب کی بات کی ہے, بالکل درست بات کی آپ نے کہ ایک لسٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے کام ہونا چاہیے. ہم نے کوشش بھی کی اور مزید بھی لوگ کوشش کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی مظاہرہ کریں, کہیں پروٹیسٹ کریں تو جوائنٹ ہو, جس کا کوئی امپیکٹ ہو. مطلب 20-25-30 ہر آدمی کر سکتا ہے, آدمی اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن کم از کم 4-5 آدمی جب نظر آئیں گے اور وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہم کرتے رہیں گے جب سیشن ہو رہا ہو, تو ایک اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. یہ جو آپ نے کہا کہ جو پیسے کو نہیں دینے ہیں, ویج بورڈ کے اجلاس میں شریک رہا ہوں, اس کے کوئی 25-30 اجلاس ہوئے ہیں. وہاں پر جو فگرز بتائی گئی ہیں 1 ارب روپے کے لگ بھگ حکومت تسلیم کرتے کہ ہم نے ان کے بیک لگ بھی کرنا ہے. اور جب میں نے آپ پچھلی میٹنگ تھی, میڈیا کے لیے انہوں نے بلایا تھا, تو سیکرٹری اس موضوع کو بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ پی آئی او تیار تھا نہ سیکرٹری تیار تھے. دونوں کہتے تھے کہ اس سے کیا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو جائے گا, پیسے دیں, اور اس کے ساتھ جب آپ پیسے دیں تو لوگوں کو یہ بھی یقین بنائیں کہ ان پیسوں سے لوگوں کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ پہ اس بات کا بھی پریشر ہونا چاہیے کہ جو ان کے واجبات دینے ہیں وہ بھی دیں. ابھی ویج بورڈ کو گیا ہے, ہمارا ویج بورڈ اس سے لٹکا ہوا ہے. جو میں آپ ریکارڈ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, مجھے بتایا گیا کہ چیئرمین ویج بورڈ نے یہ لکھا کہ مشروط کریں اس کو اشتہارات سے, کہ جن اداروں میں ویج بورڈ کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ان سے اشتہارات اسی صورت میں ان کو دیے جائیں تاکہ وہ ویج بورڈ کی ادائیگی اس کے مطابق چل رہے ہوں. لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی تک وہ رکا ہوئے سے وہ وزارت قانون سے اس بارے میں رائے لے رہے ہیں کیا چیئرمین ویج بورڈ یہ پابند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. ہمیں اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کا ہمیں دباؤ ڈالنا پڑے گا.
یہ اشتہارات کا جو اگر کمپلشن ہو جائے گی نا تو بڑا فرق پڑ جائے گا اس سے کہ وہی ادارے اس اشتہارات کے مستحق ہوں گے کہ جہاں اس ویج بورڈ کا عمل درآمد ہو پھر کو بقایا جات والے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بہت پریشان کن. میں اپنی زندگی میں نے 1970 میں جرنلزم کا آغاز کیا تھا, جسارت اخبار سے کیا تھا. میں نے اتنے بدترین حالات زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. آپ یقین جانیں کہ اس زمانے میں بھی مناج برنا صاحب مرحوم ہوتے تھے, ان کی کال پہ لوگوں نے اسٹرائک کیا, ہڑتال کی. ہم بھی اس میں لیاقت باغ میں جو پریس کلب پرانی جگہ ہوتا تھا وہاں سے جلوس نکلتے تھے. بڑے لوگ بے روزگار ہوئے, لیکن لوگوں نے امپلیمنٹ کروا کے چھوڑا ویج بورڈ. وہ پہلا دوسرا ویج بورڈ تھا جو عمل درآمد ہونا تھا اس وقت. اس کے بعد اب 8واں آ گیا. 8ویں میں بھی بہت دال آٹے میں دال برابر کیا کہتے ہیں, نمک میں آٹے میں نمک برابر لوگ رہ گئے جن کو عمل درآمد ہوگا, لیکن کانٹریکٹ پہ لوگوں کا بھی لاگو ہوگا. لوگ جائیں گے کورٹس میں تو اپنے وہ منوا سکیں گے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس جس آدمی کو متاثر ہوگا اس کو جانا پڑے گا. لیکن اب وہ اگر متاثر نہیں جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال ایک آخری بات یہ ہے کہ میں ایک بار پھر یقین دہانی کراتا ہوں, آپ جو کمیٹی بنائیں گے تو تب بھی ہمیں میں اس میں شامل ہوں یا نہ کریں آپ, لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا بٹ صاحب, ہم سب کٹھے اس کام میں. لیکن خدا رہا یہ کوئی مظاہرہ کوئی ایجیٹیشن کچھ بھی کہہ بھی جائے مشترکہ طور پر جائے اور لا عمل بنا کے جائے. ابراہیم, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شمسی صاحب کا کہ جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا جو آج کل ہر جرنلسٹ کو, ہر میڈیا ورکر کو جس کا سامنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے رات بھی شمسی صاحب سے ایک بات کی تھی, کیونکہ عام طور پہ جب پریس کلب کا الیکشن قریب آتا ہے تو اس طرح کی میٹنگ بلائی جاتی ہیں جس وجہ سے ایک بڑا کاز بھی اس کو لوگ مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کیا اس کا میٹنگ کا ایجنڈا کوئی پریس کلب کا الیکشن ہے کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے یہ جو میڈیا کی سچویشن ہے اس میں بھاگ بیٹھنا ہے. اب شمسی صاحب دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے کہ ایک بات چیف جسٹس کی کورٹ سے ہو کے بھی اگر بال واپس آئی ہے اور لوگوں کے مسائل اگر حل نہیں ہوئے, متی اللہ جان صاحب وہاں موجود ہوتے تھے ہر جگہ, تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا بھی کیا ہے. کہ اگر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آپ کو دھوکہ دے دیا, اس ملک کے چیف جسٹس نے آپ کو مالکان سے مل کر اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کر دھوکہ دے دیا, تو پھر ہمارے لیے اور ٹھکانا کیا ہے کہ ہم اپنے ان مسائل کے لیے کہاں جائیں گے. ایسا بیٹھے ہیں کہ ادارے میں میرے بھائی آئیے, آپ کا کیا خیال ہے, ان کا دل نہیں کرتا کہ میرے ورکر کو تنخواہ ملے. ان کی مالک, میں چیف جسٹس کے پاس بیٹھا ہوا تھا ثاقب نثار کے پاس, اس نے کہا جی آپ اخبار بند کرنا ہے بند کر دیں, میں پیسے نہیں دے سکتا. کیا کرتا چیف جسٹس ادھر کیا کرتا, ہم کیا کرتے. اب شمسی صاحب ہم جو سمجھتے ہیں کہ مالکان اسٹیبلشمنٹ ایک ہے اس پورے اس قصے میں, ٹھیک ہے, اور یہ جو پاکستان کا ان اناؤنس سینسرشپ ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو وہ ورکنگ جرنلسٹ جو تمام لڑائی لڑتا تھا اس کو اتنا مجبور کر دو کہ بعد سب اپنی دار روٹی کی بات کرنے پہ مجبور ہو جائے, یہ ہم نے کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو نظر آتا ہے جو ایک ہوپ ہے وہ اب بھی پارلیمنٹ ہے کہ اگر ہم پارلیمانی کمیشن ایک بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پورا پریشر ڈال کے, تو ظاہر ہے وہاں میرے نمائندے بیٹھے ہیں جو آپ کی بات بھی سن لیں گے, جو اس کی بات بھی سن لیں گے, عوامی نمائندے ہیں, وہ پارلیمانی کمیشن بنے گی. میڈیا کرائسس کیا ہے, ہمارے کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جینون کرائسس ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مصنوعی بحران ہے. تو یہ مینڈیٹ ہوگا اس پارلیمانی کمیشن کے پاس کہ وہ مالکان سے بھی بات کرے گا, وہ ورکر سے بھی بات کرے گا. کوئی پابندی نہیں ہے کہ ورکر سے بات کرے یا 100 ورکر سے بات کر لے. وہاں ہم اس کو یہ پابند تو نہیں کریں گے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو دوسرے سے کیوں کر رہے ہیں, تیسرے سے کیوں کر رہے ہیں. پھر وہ ٹیکنالوجی کے جو انٹروڈیوس ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھے گا وہ پارلیمانی کمیشن جو ہے, کہ یہ صرف اور صرف بدنیتی نہیں ہے, اس میں ایک ٹیکنالوجی کا بھی بڑا عنصر ہے. کہ آپ دیکھیں ہمارے دیکھ رہے ہی دیکھتے ایلفا کلر کدھر گئی, کوڈک کلر کدھر گئی, اتنے بڑے کیمرے تھے وہ کدھر گئے, فیکس مشین کدھر گئی, سب چیزیں غائب ہو گئی آپ کے منظر سے. ابھی جو ٹیکنالوجی میں اخبار میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی اب اگلے 6 ماہ میں تمام پلیٹ میکر جو ہے ان کی جاب ختم ہو جائے گی.
जो पेज मेकर हैं उनकी ख़त्म हो जाएगी कि आप कमांड डालेंगे उसमें वो प्रेस के ऊपर ही बटन लगा होगा, प्रेस भी बड़े बड़े ख़त्म हो जाएंगे। वो आप लिखेंगे 600 छापना है, वो टक 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 करके 600 बाद निकाल के निकल देगा। इसी तरह जो हमें जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बुलाते हैं कि अगर 5G 6G आ जाता है तो ये कैमरामैन किधर ड्यूटी करेंगे? उधर जाके आप लाइव अपना दफ्तर वाला आपसे ले रहा होगा तो कौन इतनी तकलीफ करेगा कि कैमरामैन वापस जाए, ग्रैब करे, वहाँ ये सब कुछ हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें एक बात पे फोकस हो जाना चाहिए कि इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमीशन ज़ाहिर है मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं सबको बुला के उनकी राय ले सकूँ। जब पार्लियामेंट्री कमीशन बनेगा उसके पास ऑफिस होगा, उसके पास स्टाफ होगा, वहाँ आप भी जा सकेंगे, मैं भी जा सकूँगा, जो मेरे ज़हन में तजवीज़ आती है उन्हें बता सकेंगे कि आप इस पहलू पे भी बात करें। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि वो उस पार्लियामेंट्री कमीशन की रिपोर्ट की एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि अखबारात और चैनल का गला इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे घोटा जा रहा है। बिल्कुल ये कह देना कि ये नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। दूसरा ये है कि मालकान ने गुज़श्ता 10 साल में जो माल कमाया वो किधर गया है? वो अचानक दिन और रात में गायब तो नहीं हो गया कि इस मुल्क में अगर 80 अरब रुपया एनुअल उन्हें मिलता था, ठीक है, जो 8-10 साल मिलता रहा उसका पार्लियामेंट्री कमीशन उनसे हिसाब ले सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमें फोकस रहना चाहिए कि हमने करना क्या है और कहाँ पे जाना है। अदरवाइज़ ये है कि एक मरे हुए जर्नलिस्ट को एक आप होप देंगे और फिर उस होप को हम पूरा नहीं कर सकेंगे और सिर्फ क्या कहते हैं कि नारों के ज़रिए उसे बहलाने की कोशिश करेंगे तो ये उसका और मजाक उड़ाने के मुताबिक होगा। हमें पहले खुद पता होना चाहिए क्राइसिस क्या है, बीमारी क्या है और इसका डॉक्टर कौन है और इसका हल क्या है। अब आपने ये क्वेश्चन क्या कहोगे यहाँ, क्योंकि मैं खुद कहा था कि हमारी देखें ये गवर्निंग पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो इस प्रेस क्लब की जिसको मुकम्मल करती है। हमारी अब तक कोशिश थी, बहुत से हाजी साहब ने कोशिश की, बहुत से लोग डालें कि ताकि हम इस चक्कर में ना पड़े कि 4-5 लोग एक ग्रुप से दूसरे, तो ताकि इज्तिमाई लिस्ट आ जाए। अब अगर नहीं होता कल इंशाल्लाह कानून आइन के दूसरे में कल नहीं आपको चीज़ हम देंगे। अच्छा जी, करार साहब को बुलाया था, फारूक फैसल साहब को जी सबको बुलाया था। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बुरान बहुत गहरा है, मसाइल भी बहुत पेचीदा है और हम सब जानते हैं इसको। और मैं तमाम दोस्तों का, ख़ास तौर पर हाजी साहब का, भट्ट साहब का, सरदार शौकत साहब का, भट्टी साहब, जितने भी दोस्त आए हैं, मैडम फौजिया आई हैं, भट्टी साहब आए हैं, राशिद हबीब साहब सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक जो दर्द था उसको आप लोगों ने महसूस किया है। ना ये क्राइसिस नए हैं या ना बुरान नया है, यकीनन हालात बदले हैं, प्रिंट मीडिया की जगह कैमरा आया है। यहाँ मैं 2 चीज़ें जो सवाल हुए बड़े हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि मालकान का जो रवैया है वो कोई नया नहीं है। मैंने ये सारे अदवार देखे हैं कि जब वो बेजवाब कोर्ट में जाते थे, जब अखबारात थे, वो कहते थे कि हम गरीब हो गए हैं, हमारी स्याही महंगी हो गई है, हमारा कागज़ महंगा हो गया है, हमारा कागज़ समुंदर में पड़ा है, वहाँ उसका डैमेज हो गया है, तो हम ये इतना नहीं दे सकते। वही जब मालकान चैनल्स आए, वही मालकान जब लाइसेंस लेने गए और वहाँ उन्होंने लिख कर दिया कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम चांद पर जा सकते हैं, तो उनका झूठ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो आला अदलिया है वो भी उसके भी इंसाफ के कई रंग हैं। ये सारे मसाइल अपनी जगह। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी तब्दीली हो आ जाए, यहाँ एक निसफ सदी की जगह है, कमज़ोरी वहाँ होती है, शिकस्त वहाँ होती है कि ये सहाफ़त जो है इसके अंदर जो एक कमिटमेंट होती है, जो मज़ामत होती है, जो जदोजहद होती है, वो गायब हो गई है। आज बिल्कुल बात ठीक है कि हम अकेले सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए हैं।
हमारे अंदर इतनी दीवारें खड़ी हो गई हैं कि हम एक दूसरे का दुख महसूस ही नहीं कर पा रहे। मेरा ये कोशिश जो थी, मैंने देखा कि जुमेरात को जब वो फयाज लड़के के मौत हुई है तो मुझे हर चौराहे पे 10-10, 20, 25 लोग आए, वो मातम कर रहे थे। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या हम अपना जनाजा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, हम अपने मातम भी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर कौन सी सहाफ़त? फिर आप जाएं साबुन का कारखाना खोल लें, सरिये की कोई फैक्ट्री लगा दें, पाइपलाइन की फैक्ट्री ला दें, कोई और कारोबार कर लें। सहाफ़त जो होती है वो आपके पूरे समाज की लड़ाई है, और मेरा ये बिलीव है, और ये सारे क्राइसिस हमने फेस किए हैं और जंगें जीती हैं। बड़े बड़े जाबर हुक्मरान आए, ये आज की हुकूमत तो कोई रेत पे खड़ी है। यहाँ तो बड़े डिक्टेटर आते थे जो जिनको लोहे की दीवारें थी, वो भी पाश हो गई हैं। उसके पीछे क्या था? आपका एक इत्तेहाद था, आपकी एक यूनिटी थी, आपके अंदर एक कमिटमेंट थी। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर वो कमिटमेंट वापस आती है, आप एक छत तले हम इकट्ठे होते हैं, आपकी ताकत के सामने मेरा ये बिलीव है, मेरा ईमान है कि कोई तो आपके सामने खड़े नहीं हो सकता। यही बात काम कटहरों में मैंने कर गया हूँ, यही मालकान रोते हुए ITN में हमीद हारून और मीर शकील और रहमान आए, और यही मालकान जब इन पर गर्म हवा आती थी, मीर शकील और रहमान रोता हुआ अब्दुल हमीद छापरा के पास आया था। जब इनके ये सरमायादार, इनके आपस में भी टूट फूट है, ये किसी के साथ खड़े नहीं होते। मजीद निज़ामी मरहूम, उन्होंने कहा था मीर साहब जाएँ हालीटेन होटल में, ये आपका अपना मसला है, जिस साहब और रहमान ने वो किया था उसका, जाओ। जब जान एक सफ़े पे आ गया था, तो कहने का मतलब है कि आप ताकत है, वो ताकत हमने कैसे जोड़नी है? आज भी हमारे पास वो मौजूद है, अगर हम उसको नहीं देख पा रहे, उसको ज़ाया कर रहे हैं छोटे छोटे मसाइल में। मैं तफसील में नहीं जानता क्योंकि ये आज जो नशिस्त थी, ये बिल्कुल एक मैं समझो कि इसको मैं क्या कहूँ, मैं कि ये एक कैफियत है कि जो हमने फेस किया है, मैंने जो हम सब ने देखा है कि आपके पास ताकत है। आज कमज़ोरी हमारी सिर्फ ये है कि हम में मज़ाहमत ख़त्म हो गई है, हम जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो आगे साहब आपने बात की ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर वो जज ने लिखा है ना कि इश्तिहारात को मशरूत किया जाए, जहाँ व्हाट्सएप बैठे हैं, सारे दोस्त बैठे हैं, ये दोनों ऐवानों में करारदाद मंजूर हुई है कि इश्तिहारात को वेज अवार्ड के नफाज से मशरूत किया जाए। 2 कैबिनेट ने, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कैबिनेट ने ये फैसला किया हुआ है, चौधरी शुजात जब वज़ीर आज़म थे उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया हुआ है। तो ये तो धोखा दे रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो आपका सफ़र मज़ीद आसान होगा, लेकिन मंजिल जब उस वक्त मिलेगी कि जब हम आपस में जो कदूरतें हैं, नफ़रतें हैं, इख्तलाफ राय को नफ़रतों में जो बदलने का रवैया है हमारा, ये जब तक ख़त्म नहीं करते तो फिर ठीक है, मरते रहें। लेकिन मैं नहीं समझता, आज जिस तरह दोस्तों ने यहाँ आए हैं, दर्द का इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ कि दिया जल रहा है। आइए इस दिए को एक शोला बना दें, और उसके लिए जो फौरी अमराना ने 2 बातें की हैं कि इस वक्त एक हमारा तवीलुल मियाद जो एजेंडा है, वो भट्ट साहब ने अच्छी बात की कि हम पार्लियामेंट हमारा फोरम है, वहाँ से भी कर, लेकिन फौरी जो एक मसाइल हैं, जो तनख्वाहों के मसाइल हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर बात करनी चाहिए। और एक तमाम अपनी जो यूनियंस हैं, अपनी अपनी जो पग है, मैं अब ये कहना ही छोड़ दिया कि क्या करूँ, अपनी अपनी पग बरकरार रखें, लेकिन इस पॉइंट पे, लोगों की रोज़ी के पॉइंट पे, लोगों की इंतकामी कार्रवाइयों के नुक्ते पे आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसके लिए तमाम जो धड़े हैं, तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अपना अपना एक नुमाइंदा दें, ताकि हम एक इस मसले पे इकट्ठे होकर टकरा जाएं और मंजिल आपके सामने आएगी। मायूसी की कोई बात नहीं, सिर्फ हमारी अपनी सिर्फ थोड़ी सी बात है कि आखिर में ये कहूँगा कि मेरी मैं मन मारी रब जोगी न था कोई, आए इस मैं को ख़त्म करें। शुक्रिया। नहीं कर सकता कि आप कमेटी के सीनियर्स को नहीं, वो एक अलग एजेंडा है, हम उनको बताएंगे, वो भट्ट साहब ने जिम्मेदारी ले ली है, वो ये करेंगे।
इस वक्त मसला रोजगार का, इज्जत नफ्स का है। कमेटी सर भट्ट साहब किसके सरबराही में होनी चाहिए, आप ये बता दें। आपने सबसे कहा कि अपने अपने नुमाइंदे दे दें। आज आपकी यही अनाउंसमेंट है कि नहीं आ जाए उनकी मौजूदगी के बगैर हम कोई ऐलान करेंगे तो कल वो कहेंगे कि हम बिजी थे। अगली मीटिंग कर दें, अगली मीटिंग बुला लें, अगली मीटिंग आप सिर्फ कायदीन की बुला लें। अगले संडे को फिर हम अपने कायदीन की बुलाएं, अगली मीटिंग कायदीन की बुलाएं, जो कायदीन बुलाएं। हो गया कि एक जर्नलिस्ट क्राइसिस एक्शन कमेटी बन गई है। हाँ जी, तो सरबराह आप हो गए, तमाम नुमाइंदे थे, सरबराह आप हो गए, नुमाइंदे दे लो सारे। ओके, अगली वीक को वापस आ